It's me an immense pleasure to greet you all on behalf of Kamal Institute and Kamal Institute of Higher Education and Advanced Technology, affiliated to Guru Gobind Singh Indraprastha University, New Delhi. KAHI takes pride in organizing events and sessions for students' holistic development on regular basis. I, Rishita from BJMC third year, would like to welcome you all to today's session, Innovative Ventures Unveil Business Plan Poster Presentation. Moving forward, I would like to request our Honorable Director, Sir, to felicitate our esteemed guests with a plant day as a token of respect. Come. Sir. Small token from my side. Thank you, sir. CQS, a training institute in skills and talent development, takes an initiative to professional to enhance their knowledge to industry. Ready programs together curriculums as a part of this initiative, having worked with various industries so closely, they understand the changing workforce requirement in today's era. CQS being the Talent Development Institute and New Age career in digital transformation, banking, finance and data analysis. They have strengthened our offering to prepare candidates across the Delhi NCR to be better candidate in their preferred domain by impacting the best content by the industry experts. Presentation of posters. We are sending the group one for the presentation of posters. That basically represents our name. Basically represents our team names in our Cofeteria brand, basically. And it's also represent our tagline, which says made with love and ecological coffee. So basically love, love is a thing which we are providing to our customers, irrespective to their students, middle age or adults. So basically here it is a logical refers to the I would say that कि ये हमारा जो है ecological क्यों है, क्योंकि हम सारे ages को देख के चलेंगे, because school going और college going students ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते, because their pocket money is मतलब उनके parents को कम pocket money देते हैं. तो as usual we all are students, college going students, so we know that हमारे parents हमें इतने pocket money नहीं देते. And we have to spend lot of with our friends time. So taking that concept, we have our business idea is to open cafeteria near our college campus, so that every student or aged can relate to our concept and come in our cafeteria. Yeah, please. So nice concepts, guys. Just some questions I have. You guys only serve coffee or is there anything else? No, we are not only coffee. We have our snacks, meals. What is the price that? What's the price that you're offering for the students? Because you know these college students they don't have much money to spare on. So what are the price that you're quoting? 50 to 100 about. सारे price इतने including food also. Including food. So how you manage the cost? For example, if the price range is same, then how you manage the cost? Basically, the cost, because our concept is to attract the people more, because we are in our initial stage, so we have to be managed with the things, irrespective to our profit. So have you calculated any feasibility cost? Like for example, how you check either this particular concept is feasible or no? Sir, basically, we have taken the average of 80 rupees per person. So for a day, we are assuming that 30 people will come. This is your assumption. Yes, sir. 30 people will come to your cafeteria. Yeah, cafeteria. And if not, then Then there is it could be another possible. second plan is also be there, na? Yes, How, sir. how we manage this thing? Yes, beta. पॉसिबिलिटी ये भी है ना कि हमारा
जो अमाउंट हमने एवरेज डिसाइड किया 80 रुपीज, उससे ज़्यादा भी तो हो सकता है। maybe अच्छा, आपने कहा कि आप कॉलेज में ओपन कर रहे हो, आपने परमिशन इसके लिए बात हो गई? Not in the college, nearby the college. Nearby. ओके। so for that you need some space also, Yes, so sir. renting expense will also be there. And how Yeah, you yeah, manage yeah. the cost? Yes, sir. टोटल कॉस्टिंग कितनी लगाई आप लोगों ने? टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी? इनिशियल स्टेज पे 2 लाख रुपीस, अगर इंटीरियर एंड लोकेशन सब कुछ सोच के अगर हम चलेंगे तो 2 लाख रुपीस। और अगर हम वो 50 रुपीज़ वाले मार्जिन से चलेंगे कि एक बंदा 50 रुपीज़ ईच डे कर रहा है एंड 30 पीपल आ रहे हैं, तो अराउंड 7.5 लाख रुपीज़ हमारा प्रॉफिट ईयरली बनेगा। नहीं, रेवेन्यू। आप कुछ रिजर्व में लेके चल रहे हो क्योंकि पहले मंथ क्या पहले 2 मंथ आपका लॉस में जाए, तो कुछ क्या आप शट डाउन कर दोगे या पहले 2 मंथ में, या क्या करोगे, क्या प्लान है, स्ट्रैटेजी है? रेंटिंग कॉस्ट भी तो आएगी इसके अंदर। Yes, sir. But हम अब shut down तो नहीं करेंगे. We will carry on with the our we can say loss part because हम जो है profitable customer के perspective से सोच के चल रहे हैं. Irrespective to कि हमारा profit हो रहा है कि नहीं हो रहा है. But how you manage your advertising, how you advertise your business? As ये नियर द कॉलेज है तो हमारा टारगेट मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली है, क्योंकि स्टूडेंट्स Because you have a great contact with Great contact, students. yes. Okay, right. So, have you tried for any kind of a compensation or any kind of a rebate from the certain agencies who can support you, who can help you, who can guide you, how you manage this business? Have you contacted any agency? No. कॉलेज के रेडियस 1 किलोमीटर रेडियस में कितने कॉफी शॉप्स हैं ऐसे? जस्ट आस्किंग, कैफेटेरिया कितने कॉफी शॉप? कॉम्पिटिटर्स कितने? नॉट मोर देन 2 and 3, एंड वो भी अगर मैं 200-300 रेंज में भी चलूँ तो वहाँ पे भी नहीं है, कोई भी कैफेटेरिया नहीं है जहाँ पे अच्छी सीटिंग होगी, व्हाट डू यू मीन बाय अच्छी सेटिंग? कंफर्टेबल सीटिंग जहाँ पे लोग एरिया आना कितना प्रेफर छोटा है? करें। कंफर्टेबल सीटिंग के लिए मिनिमम कितने एरिया की एरिया कितना रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड होगा? आई गेस 100 गज या 150 गज, इससे ज़्यादा नहीं रिक्वायरमेंट है। It's a very big area for this particular cafe shop. Am I right? It's a big area. और और रेंट फिर उसका उसका रेंटल भी बहुत ज़्यादा रेंट भी बहुत ज़्यादा होगा। How And will if you you manage talk the about rent? major rental is 30,000, 25 to 30,000, bare minimum, because it's a commercial site, right? Because it is not a standalone institute, na? We are having a school also. We are having a multiple institution nearby. Any idea how many people you need to run your operations? People required with us. कितने लोगों की जरूरत है? Basically from starting we required only 2-3 people. 2-3 people, the monthly salary, rent and everything, monthly expenses. Have you calculated that? Minimum इतना खर्चा आएगा महीने का? मिनिमम तो सर हम सोच के चल रहे थे कि मतलब ऐसे 10 to 15 हमारा रेंटल एक्सपेंसेस आएगा एंड रिलेटेड टू दैट 8 to 9,000 इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड ऑल एंड 16 to 26 16 to 25 I can say the wages we will be giving monthly salary to the people we are hiring. And what about the equipment charges? Like for example, for a coffee, you need a coffee machine, sandwich maker. For example, you need everything, na? सेटअप अब का ये cost कौन बनाएगा इसके लिए? आप कोई शेफ रखोगे, आप लोग ही बनाओगे? Who will make this? मतलब आप लोग तो पढ़ाई भी करोगे। किसी से tie up है कुछ इस तरीके से? 2-3 people में एक शेफ भी इंक्लूडेड होगा और वेटर्स भी इंक्लूडेड होंगे। और जैसे मैंने पहले बोला कि 2 लाख की इन्वेस्टमेंट रहेगी तो उसमें इक्विपमेंट्स आ गए विद द अच्छा, ठीक है, 2 lakh में with the investment with equipment charges. Okay. It's a great, wonderful idea. Any other suggestion, ma'am, sir? इकोलॉजिकल की जगह इकोनॉमिकल होता तो ज़्यादा बेहतर होता। सर इकोलॉजिकल इसलिए रखा क्योंकि एनवायरनमेंट को भी देखते हुए चलना है ना. बट आपको अपनी पॉकेट भी तो देखनी है। पॉकेट भी तो देखनी है revenue सर भी- पॉकेट को देखेंगे तो फिर एनवायरनमेंट Environment एनवायरनमेंट दोनों को बैलेंस करके चलते हैं। अच्छा So बात- take the suggestions. कितने टाइम तक आप मैनेज कर पाओगे सिर्फ कस्टमर के बारे में सोचकर? अगर आप अपना प्रॉफिट नहीं बनाओगे तो इट्स टू ऑब्वियस कि आपको 2 महीने 3 महीने माइट भी जितना आप रन कर पाओ 1 ईयर और 2 ईयर 2 ईयर्स के बाद यू हैव टू शट योर बिजनेस। अगर आप सिर्फ कस्टमर के बारे में सोच रहे हो, अपना प्रॉफिट नहीं देख रहे हो,
So it is mandatory to run any business. You have to think about your profit as well. एक सेकेंड, आपके एस्टिमेशन के हिसाब से आपने जो बोला, आपने 25 to 30,000 अगर आप रेंट दे देते हो, उसके बाद आपको अगर 2 लोगों की भी रिक्वायरमेंट है तो 30,000 अगेन सैलरी, आप बोल रहे हो 16 to 26,000, मैं तब भी मिनिमम ले रही हूँ क्योंकि अकॉर्डिंग टू मार्केट 15,000 हम मिनिमम वेजेस देते हैं पर पर्सन को देते हैं अगर हम नॉर्मली अपनी शॉप पे काम के लिए रख रहे हैं. सो 15,000 इज इनफ, not more than that. You have to there is nothing that you have to spend 26,000 for a person. So 15,000 is okay. 30,000 again 65,000 आपका, जहाँ पे मैं रॉ मटेरियल की बात नहीं कर रही, सिर्फ रेंट और वेजेस में आपका ये जाएगा ही जाएगा 65,000. तो कैसे बेसिकली हम calculate मैक्सिमम करेंगे? लेके चल रहे हैं जो हमारा वो है क्या कहते हैं सारा. एक सजेशन ये भी लो, आपने जो अपना यार्ड रखा है ना वो काफी बड़ा रखा है, रेंज बहुत ज्यादा है, उसे थोड़ा सा कम कर. हाँ, स्पेस इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है. अगर आप 25 अगर आपका 25 गज का भी जगह होगा ना, वहाँ पे भी बहुत अच्छे से सेटिंग हो सकती है. ठीक है, फिक्स और- कॉस्ट कम हो हाँ, जाएगी. और आप यस एग्जैक्टली आपकी फिक्स्ड कॉस्ट कम हो जाएगी और अपना वेरिएबल्स को भी थोड़ा डाउन रखो, वेरिएबल्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं. ठीक है, तो आप प्रॉफिट के साथ साथ सोचो बिजनेस को कैसे रन करना है. Have you thought that you got this domain nsquare.com? Is this feasible? Till now it is not feasible. That you are Yeah, I have like, yes sir, because in our initial state we have to work upon all the aspects related to business and non-business as well. बिकॉज अभी मार्केट में जाना है तो हमें सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, मार्केट से रिलेटेड भी और मार्केट के बाहर भी, बिकॉज वी आर इन फ्यूचर वी हैव टू ग्रो आवरसेल्व्स. कॉफी मार्केट में काफी क्लटर्ड हो चुका है आपके लाइफ में. ठेका कॉफी सबने सुना है. देन आपका थर्ड वेव कॉफी, देन आपका स्टारबक्स ऑलरेडी मार्केट में है क्योंकि स्टूडेंट्स के दिमाग में वही रहता है कि दो तीन है, कैफे कॉफी डे या ठेका या जो भी है. सर अगर हम दूसरों को भी लेके चलें तो वो मतलब रेंज में नहीं है. रेंज में नहीं है. अगर मैं Starbucks target audience is only the students Students. and nearby area. नियर बाय Right. उसको अट्रैक्ट तो वही करता है ना. सर अगर हम स्टारबक्स को भी लेके चले तो मिनिमम से मिनिमम कॉफी भी 350 की मिलती है वहाँ. और वी आर नॉट ओनली स्पेंडिंग द मनी ओवर द स्टूडेंट्स हमारा बेसिकली मेन टारगेट है स्टूडेंट्स, कि एक बच्चा 300 रुपये सिर्फ एक कप कॉफी के लिए तो नहीं लगाएगा. what are your future plans? How you will expand your, if you have to expand, how you will do it? फर्स्ट ऑफ ऑल सर प्रॉफिट मार्जिन देखना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें 2-3 मंथ्स में तो नहीं पता चलेगा कि वी विल ग्रो और नॉट. वी हैव टू सी मिनिमम टू मिनिमम 1.5 years आई कैन से. आफ्टर दैट वी कैन ग्रो आवर फ्यूचर एस्पेक्ट्स. वी कैन हैव आवर ब्रांच नियर अदर इंस्टीट्यूशंस एरिया. मेन्यूज को भी एक्सपेंड करने की कोशिश प्राइसिंग करें. को भी और इंक्रीज कर सकते हैं विद टाइम. मैं एक ना आपको एडवाइस देता हूँ. व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज, आई वाज इन आईपी यूनिवर्सिटी, टिप्स में पढ़ता था. तो मैंने अपने कॉलेज डेट में मैंने स्टार्टअप करा था एचआर कंसल्टेंसी. तो आई गेस आई डोंट नो, पता नहीं अभी वो इंक्यूबेशन सेंटर में जो है ना आईपी का इंक्यूबेशन, वहाँ पे ना स्टार्टअप को फंडिंग देते थे. सो आई पर्सनली वेंट एंड मैंने फंडिंग रेज करी थी अपने स्टार्टअप में एंड आई गॉट इट. तो मैं आपको बोलूँगा कि आप 2 लाख की जगह थोड़ा ज़्यादा अमाउंट लेके चलो. That is why I told you, ना कि any connection with the good corporate professionals or any funding agency, आप उसको coordinate करो तो you will get some funding also. ताकि आपका रनवे कम से कम 6 महीने का हो. और प्रॉफिट का भी सोचो. And somewhere around you are getting some amount, interest-free amount as a funding from the funding source. और वो भी कर सकते very हो. important. This is very important. ये भी मिल सकता है आपको, because 2 लाख रुपीस अगर आप लोन पे भी लोगे, फॉर एग्जाम्पल यू नीड टू पे सम इंटरेस्ट. तो अगर आपको कोई फंडिंग एजेंसी मिल जाए जो आपको विदाउट लोन ही वो कुछ चीज़ प्रोवाइड कराता है, दैट विल गुड फॉर योर बिजनेस, राइट? सो वर्क हार्ड, गुड, वेरी नाइस आइडिया. थैंक यू सर. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू. थैंक यू बेटा, थैंक्स. Sir, I am Gaurav Singh Joon, 20% BCA. This is my team Akshit, Manika and Kushi. We are representing our brand name Gains. It is a virtual reality fitness studio where we are going to open a gym through virtual reality. We will train people through virtual reality and immersive experience. Because what happens in today's world, like people take subscription of gyms. For 1 week or so, they go and they get bored after that. So they don't have enthusiasm to go, or they don't get motivation and meals prepared for them. So we will introduce subscriptions. Like the first basic subscription hour would be for the VR, for the people that have already VR headset. They will get the hour subscription, and we will assign them a personal trainer that will keep record about their health vitals and their workout sessions.
Second subscription hour will be for people who also want meal. That a personal trainer assigned to that customer will provide them meals and their health vitals and keep them organized. Third subscription will be our most premium and expensive one. That's for the people that don't have their own personal VR headset. We will partnership with brands like Oculus that provide VR headset, and we will personally give them headset so that they can join our sessions on their headset. The GAIN's full form stands for Gain and Nutrition with Zeal. That means we will focus on the holistic development of a person, not only just physical but also their mental and nutritional value. Now for the marketing strategy, Khushi will explain. So we can use some YouTube's, Instagram and Facebook channels to show our videos of fitness camps, and we can collaborate with some fitness influencers like Rohit Khatri, because they all are famous on online and known for fitness expertise. So will they work for free? Will they work free for you? So we can pay them. Then how you manage the expense? YouTube marketing is fine, but if you talk about the professional marketing, it includes certain charges. So Sir, they will be our brand ambassador like for GAINS, and we will provide them royalty on how many ads they do on social media. and all. Ideally, they don't take royalty, they will take money. There are two types of influencer, micro and macro. तो रोहित खत्री मैक्रो में है, जिसकी मिलियन में से वो है followers. तो जो मिलियन में आएगा उसके चार्जेस ही 1 लाख होंगे एक रील पर. अब आप लोगों को बताओ कि कैसे मार्केटिंग आप देखते हो, मार्केटिंग भी कैसे कीजिए. सपोज आई एम गिविंग, आपका बजट है 5 लाख रुपए का, आपको उसको यूटिलाइज करना है 3 महीने के लिए. सो आप एटीएल एंड बीटीएल में कहाँ का वो डालोगे? एटीएल इज अबव द लाइन, बीटीएल इज बिलो द लाइन. तो 5 लाख को आप 3 महीने में बाइफरकेट करना कि आपका एक ब्रांड थोड़ा दिखे, कहाँ का लगाओगे इसको? सर इफ अगर हम रोहित खत्री या ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को इससे का कांटेक्ट नहीं कर सकते, तो हम नॉर्मली जैसे तो जिनके ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं बट वो इतने फेमस नहीं है, तो हम उनकी हेल्प भी ले सकते हैं. हम अपने जो हमारी कंपनी में जितने भी हमारे साथ काम कर रहे हैं वो उनके थ्रू भी हम अपना प्रमोशन करवा सकते हैं. वैसे बच के 4 लाख. Sir, as of now, we will give detailed answer in further round 9. This is only about poster and So logo. one question I want to ask you, like Yes, sir. you are doing through virtual reality. Yes, sir. So how will one get the feel of that dumbbells and things like that? in Sir, VR goggles? for strengthening, they must have their, or we can also provide them with the equipment also. But mainly we will focus on the virtual environment that is immersive. Like we can also let them play different games like badminton and baseball and. Those are already available if someone is already having a Uh, VR headset, so they will be into games. I get it. It is also that we will provide them a personal trainer that will tell them what they should do and how much they should. Because gamers do them for their interest and their for fun, not for their like physical and nutrition levels. So the personal trainer will tell them what type of exercise they should do and how long they should do. इंस्ट्रक्शन इज गुड, बट आप ये सारे इक्विपमेंट्स, एक आपका जो सब्सक्राइबर है वो दिल्ली में है, दूसरा बैंगलोर में है, Yes, sir. तक ये सारे इक्विपमेंट्स आप पहुंचाएंगे कैसे? बिना डंबल्स के तो एक्सरसाइज आप नहीं कर नहीं पाएंगे. Exactly, my point. सर डिफरेंट हमने सब्सक्रिप्शन इसलिए रखे हैं हमें, जो हमारा बेस वाला सब्सक्रिप्शन है जिसमें हम सिर्फ गाइडेंस देंगे उसको वर्चुअल रियलिटी के थ्रू. उनसे उनका जो पर्सनल ट्रेनर होगा उनको कॉन्टैक्ट करेगा. जो हमारा सर्विस हम प्रोवाइड करेंगे वो बेसिक सर्विस होगी उसमें. लेकिन जब हम इक्विपमेंट प्रोवाइड करेंगे हम डिफरेंट कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन कर सकेंगे. जैसे मैंने आपको बताया था ओकुलस हो गया फॉर VR हेडसेट एंड मसल प्लेस हो गया फॉर आवर मील्स एंड प्रोटीन्स एंड ऑल दैट. वी विल कोलैब विद देम एंड प्रोवाइड द कस्टमर्स विद द एक्सपेंसिव सब्सक्रिप्शन. आपने अभी स्टार्ट करा है, स्टार्ट के प्रोसेस में हो? So we are starting process. We have just developed this idea. They've developed the idea certainly now. They have just developed the idea. If the idea is good, then they can start working. VR कौन देख रहा है? कस्टमर As of now, sir, we are before we have formulated. No, we have not done VR right now. सब्सक्रिप्शन के लिए चार्जेस डिसाइड करें. Not yet, ma'am, because we haven't talked to the companies and how it will go. We will first discuss with them. So have you contacted any funding agency? We just As of now, एक्चुअली हमारे पास प्रॉपर डेटा है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना सब्सक्रिप्शन डिसाइड करते तो ये प्रॉपर डेटा कैसे आएगा? थोड़ा survey करके हैं. सर्वे करेंगे. आर यू इनटू इट? campaigns.
भी एक चीज समझ में नहीं आ रही है, अगर इक्विपमेंट्स आप लोग सप्लाई करोगे तो मैं खुद अपना जिम क्यों ना खोल लूँ घर पे? VR से क्या फायदा होगा? VR सर आपको एक यूनिक एक्सपीरियंस देगा, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, आप घर में इक्विपमेंट भी ले आओ, आप जिम की सब्सक्रिप्शन भी ले लो, आफ्टर वीक और सो आप मोटिवेटेड नहीं रहते। लेकिन जो हम VR में आपको अपना पर्सनल ट्रेनर देंगे, वो आपको मोटिवेटेड रखेगा, आपके जो पर्सनल इंटरेस्ट होंगे वो उसको पता होंगे और वो उसके अकॉर्डिंग आपको एनकरेज करेगा। जैसे एक कस्टमर है हमारा जिसको क्रिकेट बहुत पसंद है और उसको फिटनेस में जाना है, या वो बिजनेसमैन है क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है, वो अपने घर पे रिमोट प्लेसेस पे रहता है वो, तो इसलिए उसके लिए VR में हम उस पर्सनल ट्रेनर को बताएंगे कि उनके इंटरेस्ट क्रिकेट है, तो क्रिकेट से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होगा वो VR में उनसे करवाएगा, इसलिए ताकि वो एनकरेज हो। वन इंटरेक्शन होगी। यस, जो हमारा पर्सनल ट्रेनर होगा उसके पास हम 5 to 6 कस्टमर्स देंगे कि वो आप मैनेज करें, क्योंकि ओवरलोड भी नहीं कर सकते हम, क्योंकि हमारे पर्सनल ट्रेनर दिन में जो टाइम देगा, और वीक में हम 6 डेज हो जाएंगे, 6 डेज वो हमारा वो होगा। So how much percentage कितनी देना? मेरा भी कितना percentage? Starting we will go with 2 to 3 trainers because in future the traffic increases and customer comes, we will increase the value. शादी पता है कितना चार्ज करेंगे? परसेंटेज कट कितना जाएगा? मान लो you are suppose you are charging 50,000 from a customer, so आपके पास कितना रहेगा और जो आप ट्रेनर को दोगे वो कितना रहेगा? That cut we haven't discussed, sir. That before we have just developed this idea. We will discuss this in the future. मेरा एक कंक्लूजन जो एडवाइस रहेगी आप लोगों को कि आप लोगों को ना इस पे थोड़ा और R&D करना चाहिए। ये मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव है आज के, क्योंकि आज के टाइम पे जेन ज़ी के राइट, एंड थोड़ी आपको गाइडेंस है, आपको थोड़ा और दिखना चाहिए कि कैसे इस पे क्या बेस्ट कर सकते हैं। सर ने मेरे को बताया कि मैं खुद अपना इक्विपमेंट लेके क्यों नहीं जिम कर लूँ, और आप कैसे बैंगलोर में और फिर दिल्ली में भी आपको अपना कैसे ट्रांसपोर्टेशन भी कराओगे, अगर इक्विपमेंट भी कराने हैं आपको, वो सब भी आपको देखना, लॉजिस्टिक देखना पड़ेगा आपको, बहुत कुछ है इसमें। कॉस्टिंग पे काम करना पड़ेगा। कॉस्टिंग पे स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक की कॉस्टिंग तुम्हारी देखनी होनी चाहिए। And you haven't even checked your competitors as well, which is very In important. virtual reality fitness, we haven't found just Apple does the Fitness Plus. That's not virtual reality. They give you a personal trainer that works on the video rather than virtual reality. Because जो market है virtual reality का वो recently 2020 के बाद इंक्रीज हुआ है काफ़ी। उसके स्ट्रेटेजिक्स हमने पीपीटी आप जब नेक्स्ट राउंड में करेंगे आपको हम पर्सनली एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि जो हमारा बूस्ट हुआ है जो लॉकडाउन के बाद काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिला है इसमें वर्चुअल रियलिटी तो में। मतलब आप सीधे एप्पल को टक्कर दे देते हैं। नो सर, वी आर नॉट लेकिन उनका जो सिमिलर मार्केट हुआ है वो हमें वही पता चला है, क्योंकि हमने जो नॉलेज करी है बोलो कि हाँ सर दे रहे हैं, ये बोलो, वो यहाँ से सुना था कि हाँ सर दे रहे हमारा हैं। डिफरेंट वो हो गया ना सर, हम वर्चुअल रियलिटी में कर रहे हैं, वो सिर्फ वीडियो में 1-to-1 इंटरेक्शन कर रहे हैं मार्केट में virtual यूनिक करोगे ना, yes, उसको sir. challenge इसलिए करोगे। यूनिक कर रहे हैं। ठीक है, एक्सेप्ट कंपटीशन। चलो गुड, Thank you so much. Thank you everyone. We are presenting our brand Enigma, which means mysterious. Like we are creating some memorable things. We are presenting our brand as a customizable brand. Like we are introducing customizable T-shirts, belts, shoes, and many more other stuff. Like the Gen Zs and the 19 and 20 age group peoples are they like fashion, and if we will give the T-shirt, like we are having plain T-shirts, they look very obvious, and if we will have a prints and have a customizable choices of them, they will be more confident, and they will face the people more confidently. So we are making their choices, and we are also having a AR feature, like AR will artificial reality. Like if I am using this face, the size of this man, like if AR will scan the body, and we will make a 3D model, and like T-shirts, we will place our 3D T-shirt in the model, and we will show them how it will look to your and how will fit to your fit to the body, and it would be more like they will buy more and have a clear idea how they will fit and how they will look in these T-shirts. ये लेंस कार्ड भी जो लेंस कार्ड वाला जो लेंस और Lens लेंस card. का- Same, but they are having a virtual reality basically. They are creating their frames in a photo form. We are creating a 3D model. We are creating an artificial reality. Means you can try virtually. We will create a model after scanning this, and we will place our T-shirt or the customizable brands over this stuff,
and we will show it to the customer and the consumer how they will look, how they will fit, and it will be more cool for them. There is a cosmetic brand also who is doing Nykaa. the same. Nykaa. Nykaa is also Yes, doing yes. this time. I have Apart very from this, much- what is the USP of your brand? Apart from this AR reality feature? Sir, basically we are first of all we will target the Gen Z's audience, which is the most customer to this brand, and will be more reliable to that. There's this also. So have you discussed about the costing? What is the cost of one printed T-shirt? So you are saying you can like customize your prints. So if I want like to print this bottle on the T-shirt, you can do that. So what is the costing? Sir, it will depend on the print. Like if Printing quality. like if the Approximate print cost. एक average था. एक average बता दो. approximately around 100 के around हो जाएगा. 100 का Research with किए? printing. इसमें से 100 बता रहे हो, उसमें से आपका कितना बनेगा? आपका मार्जिन कितना और है? जो प्रिंटिंग का सब Cost ही कट आपकी लगा के selling बताना. Selling would be around 200 around, and the costing will be around 100. 200 में आप उसके घर पे प्रिंट करके टी-शर्ट दे दोगे. And what will be the quality of the T-shirt? क्या कपड़ा कहाँ से source करते हो? Sir, like we will local brands होती हैं, मतलब locally जो customers होते हैं उनके customer उनसे टी-शर्ट्स लेंगे, and we will give it to the factory owners, and we will deal it to the wholesaler, and directly from our website or from app like Lenskart only. They are promoting their app more than their websites, so we will promote our app and website ideas. Who is working on the app? Sir, we will be discussing that also, but yeah, we will starting that. Website? Website, we are Launch कर planning दिया? a draft planning. Instagram पे है ये. डोमेन चेक किए? अभी करेंगे. अच्छा अभी सब कुछ चेक करना है. अभी आप सिर्फ ऑनलाइन में जा रहे हो कि ऑफलाइन भी जा रहे हो? D2C भी जा Only रहे हो? online. D2C नहीं करना? आगे अभी नहीं करना? अभी तो आगे तो करना ही है. आगे लाइक अगर आगे ग्रो होता है हमारा बिजनेस तो हम जो ऑफलाइन स्टोर्स खोलेंगे, आउटलेट्स वगैरह खोलेंगे जहाँ पे लोग और भी ज़्यादा चीज़ें ट्राई कर पाएंगे. First of all, we will target the manufacturers, basically manufacturer to manufacturer, B2B business. Then we will try to contact to the consumers. If we will go into the offline market and online, so all everyone can buy it from the website and apps. कस्टमाइजेशन की कॉस्ट हमेशा ज़्यादा होती है, यू नो दैट ना. तो अगर B2B मार्केट में जा रहे हो और कस्टमाइज भी कर रहे हो, B2B तो हो जाएगा, B2C में दिक्कत आएगी. Sir, वो तो depend करता है ना consumer. If the consumer want the best quality, so quality would charge तो money. आपके पास मतलब 2-3 कपड़ों के भी ऑप्शन होंगे. Fabric के options options भी भी होंगे. होंगे. As per the customer, everything is customized, sir. Everything is customized. You can From even color to customize the print to designs fabric for to your everything. Everything will be. इसको Amazon पे डालोगे? Sir, if the brand will grow, so everything. इनिशियल फंडिंग कितनी तुम्हारे पास? किसी से बात करिए फैब्रिक्स वालों से, कितने रुपए में क्या फैब्रिक आ रहा है? कुछ मार्केट रिसर्च करिए. How have you decided, guys? अभी आपसे पूछा देनी सेट ना 100 रुपीज आप शर्ट का प्राइस रखोगे 100 to 200. आपने कैसे एस्टिमेट लगाया कि आप 100 से 200 रखोगे, जिसमें आपने प्रिंटिंग भी निकाल दिया, वेबसाइट कॉस्टिंग भी निकाल लिया, प्रॉफिट भी निकाल लिया, सैलरीज भी निकाल ली, सब 100 कैसे will be cost to us, and we will resell it around 200. The 100 will be our margin. कैसे पता चला आपको कि आपका 100 रुपीज का कॉस्टिंग लग रहा है? Actually, my friend is also doing this. My friend has a manufacturing setup of this. So if I will coordinate to him, then we will. मतलब approximately cost 100 या 120 के around ही आती है उसकी. ओनली टी शर्ट की या विद प्रिंटिंग के साथ? With printing. विद प्रिंटिंग के साथ. प्रिंटिंग अलग अलग तरीके की होती है, ये आपको पता है. 3D प्रिंटिंग का चार्जेस अलग होता है मैम, अभी और 3D नॉर्मल printing प्रिंटिंग का normal चार्जेस print- अलग लेजर वाली का अलग होता है, हाँ. नॉर्मल का अलग होता है. Just we are normal printing like the जो कि steam press. धुलने जो कि धुलने के बाद हट जाएगी, नहीं. ऐसा वाला प्रिंटिंग. Ma'am, minimum charges is 200. Minimum charges is 200. By with the teacher starting. और That is 200 and it can be up to as per customer. डिलीवरी. Sir, like porter, it will. होटल से cost करोगे Charges? आगे से किसी को एजेंसी से बात करिए, हाउ मच इज दिल्ली एंड पता होना चाहिए यार, अगर तुम डिलीवरी बिजनेस में घुस रहे हो तो. दिल्ली का कितना है और आउटसाइड दिल्ली का कितना है?
मुझे बहुत डिस्कस करना 4088. और ये नाम कैसे पड़ा है एनिग्मा Like the mystery, we are creating the mystery. Like तो मतलब क्या है एनिग्मा mystery. काफी कपड़ों में मिस्ट्री है मतलब थोड़ा प्रॉफिट पे डिस्कस थोड़ा वो करूँगी आप देखो टेलर भी पैसे लेगा आपकी सिलाई आपका लॉजिस्टिक का पैसा जाएगा आपके प्रोजेक्ट भी पैसे लेंगे ठीक है और पैकेजिंग का पैसा जाएगा प्लस ब्रांडिंग का भी पैसा जाएगा फिर आपके पास और भी कैसे बचेगा मेजर कॉस्ट होगा आप जो AR का एक्सपीरियंस देना चाहते हो तो वो कैसे दोगे टेक्निकल टीम होगी आपकी कैसे उसका कैसे आपने सोचा है उस ऐसे इंजीनियर्स को हायर करने की कितने के आपके खर्चे आएंगे AR की स्टार्टिंग उसी से हुई है तो वो कैसे देखते हैं उसका कैसे सोचा है कुछ फंडिंग वगैरह की बात की है कहीं पे या सोचा है फंडिंग की बात करेंगे अभी तो बस एक आइडिया सोचा है उसको अभी डेवलप करेंगे आपके फ्रेंड का कोई है R&D बहुत बाकी है बहुत ज़्यादा बाकी है आपके जो फ्रेंड का मैन्युफैक्चरिंग का काम है उसका सेटअप का कॉस्ट कितना है For setting up any business, R&D is It most would be important. cost around. Sir, the basic setup cost around 1 lakh approximately. With basic setup हो जाता है उसके अंदर. Like उसके अंदर जैसे normal prints जो होते हैं, like these kind of stuff, ये बहुत easily print हो जाता है उसके अंदर. Sir, if we would have a 1 lakh rupees setup, then the T-shirt will be cost around 50 to 60 approximately. Like 40 to 30. If we will collect the T-shirt in a bulk, so the local vendors can give it to around 30 to 40. अनुज आपने जो rupees. प्रिंट इसमें शो किया है बेटा जो दोनों टी शर्ट्स पे ये 100 रुपीज में आ जाएगा ये मीशो पे मिल जाएगा मीशो पे मीशो पे कॉपी सर वही नगर में मिल जाएगा आराम से मिल जाएगा और 100 रुपये में मिल जाएगा हाँ आपकी वो लाइन फिर इनसे क्यों नहीं यार डेफिनेटली See, AR feature is very nice क्योंकि अभी तक किसी भी क्लोथिंग ब्रांड ने अभी तक AR फीचर ट्राई नहीं किया इवन हम लोग ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं रिलायंस गई थी शॉपिंग के लिए तब मैंने उन्हें बोला था कि आजियो पे भी अगर हम परचेज करते हैं वो हमें कम प्राइस देता है सेम ड्रेस और अगर हम ऑफलाइन जाकर परचेज करते हैं तो उस पर डिस्काउंट उतने नहीं मिलते जितना हमें ऑनलाइन मिल जाता है बट उसमें हमें ट्राई का फीचर नहीं मिला सो ये दिस इज वेरी नाइस बट R&D बहुत ज़्यादा आपको करना पड़ेगा इसके अंदर फीचर डाल रहे हो दैट इज कम्प्लीटली ओके आपका भी वेबसाइट आपका डोमेन आपका इवन चार्जेस नहीं डिसाइडेड है और आपका खुद का प्रॉफिट शेयरिंग क्या होगा वो भी वेरी इट इज वेरी डिफिकल्ट एक चीज और एटलीस्ट रेशियो निकालो एनालिसिस निकालो उस चीज़ की एक चीज और बहुत क्लटर्ड भी है बेल्ट भी है शूज भी है कैप्स भी है आप एक चीज पकड़ लो शूज अलग मार्केट हो जाती है टी शर्ट अलग मार्केट हो जाती है पैंट अलग हो जाता है क्लोथिंग मार्केट को फोकस करो वो ज्यादा बेटर है ये बॉटल्स और Bottles, कैप्स shoes, वगैरह हटा Sir, if we will have a setup like basically like I'm talking about 1 lakh rupees setup, उसके अंदर सारे customizable features आते हैं. तो if we are having something, if I am having a machine, आप 1 लाख का इन्वेस्टमेंट बोल रहे हो मशीन की कॉस्ट मशीन तो मशीन 1 लाख की इन्वेस्टमेंट में आपकी खुद की मशीन होगी या रेंटल मशीन खुद की होगी machine होगी. खुद की मशीन नहीं आ पाएगी 1 लाख में नहीं आएगी काम एजेंट पे देखा काम हो रहा था काम लगा लेकिन वही तो मार्केट है एग्जैक्टली वही तो मार्केट है वही वही है मशीन मिलती है या सस्ता दर बाजार है पर 1 लाख से 1 लाख की नहीं आएगी 1 लाख की नहीं Sir, है I'm not talking about some biggest like steam machines होती है वो approximately 1 lakh 1 to 130 के अनुज अराउंड इसमें आपको बेटा यू नीड 2 to 3 मशीन्स एक तो होगा आपका जो कटिंग वगैरह करेगी स्टिचिंग का टेलरिंग वर्क हो गया वन थिंग Ma'am, we will Second, have आपका a printing. stitched t-shirt. स्टिच टी-शर्ट्स हो गए ये डायरेक्ट टाई अप करके डायरेक्ट Direct stitched t-shirt. स्टिच टी-शर्ट्स पे आप सिर्फ प्रिंटिंग करोगे ये प्रिंटिंग पैकेजिंग भी आपकी है नहीं है वो भी आउटसोर्स करोगे पैकेजिंग आप आपकी है कैसे डिफरेंट होंगे दूसरे बगल वाले प्रिंट और मग जो छाप के देते हैं उनसे Sir, quality. किस चीज़ की क्वालिटी कॉटन वो भी दे रहा है कॉटन आप भी दोगे क्या डिफरेंस है How चश्मा तो लेंस कार्ड बनाता है और नॉर्मल भी बनाता है. तो वो एक ब्रांड बन गया लेंस कार्ड पता है और लेंस कार्ड जॉन जेकब्स और वैसे चश्मा बनाता है अब उनके अपने चश्मे नहीं है वो तो उनके होम ब्रांड्स हैं. हाउ यू विल डिफरेंशिएट फ्रॉम द अदर कंपनी Sir, कोई ना future. एयर फीचर Sir, I'm also a 3D modeler and I also know AR and VR effects. I'm also like into this field only. कुछ बनाया आपने 3D में अभी तक कॉलेज डेज में कुछ भी डिजाइन करा है Sir, like I'm starting a film. I'm making a film. I've started a filmmaking. So I'm making the models of the characters and all.
Do you have any draft of it? थोड़ा ट्रेलर टाइप कुछ हाँ, वीडियो कुछ शॉर्ट दिखा वीडियो सकते कुछ हैं। है He can show it in next. नेक्स्ट वन Okay, में आप okay. थोड़ा जस्ट दिखा दें अपने वीडियो रेडी लेकर आना अपने Sir, I'm not having the videos. I'm pursuing a course with the BCS, so I'm learning and making and learning and making. So that. तो कुछ भी ड्राफ्ट है, चाहे फोटोज का, चाहे वीडियो का, छोटी सी क्लिप जो हो भी कुछ, कोई ठीक कनेक्शन है? हो जस्ट शेयर In next one, just share. नेक्स्ट Thank you. Thank you. Good afternoon, judges. This is our poster. We are going to present our event AIs. This is our company. We are going to tell you about our topic is event management. So we will firstly give you a brief intro about our teammates. So I, Aksa Zubair, she is Kirti Asthana, and he is Surya Bhola. We are BCA first year student, and we are studying currently at the Kaman Institute of Higher Education. So let's. Kindly hold your poster properly. You can give it to me. So let me give you a short brief about event management. Event management is organizing, you maybe know, organizing and coordinating an event. In it includes event manager, which sees all the event things that can be happen properly. In event management there is a lot of we need lot of coordination in it, properly coordination in it. So like if we have to make an event successful, we have to make a lot of complexity in it, and we have to it is expensive also. आपने टाइटल लिया है इवेंट AIs. क्या आप उसमें कुछ AI का फीचर डाल रहे हैं? Yes sir, it has AI in it. अगर हमें कस्टमर को कस्टमाइज करनी है कुछ चीज़, हम उसको एक प्रॉप दिखा रहे हैं, एक इवेंट दिखा उसको, लाइक ओकेजन हो गया, फेस्टिवल हो गया, या सेरेमनीज हो गई, मैरिजेस हो गए, अगर कुछ भी है उसके हिसाब से हम AI का यूज़ करके उस ऐप में उसको कस्टमाइज करते हैं ऑन दी स्पॉट. और इसके अंदर हमारा ये भी है, वो इको फ्रेंडली भी है. हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं हम इको फ्रेंडली प्रोडक्ट यूज़ करें. मतलब आप कह रहे हो एक सेटअप में आप उनको पहले एक डिजाइन बना के दिखाते हो, हाँ. बट वो AI फीचर तो नहीं है, तो पहले से चलते आ रहा है. नॉर्मल फोटोज हम हाँ. कैसे स्वाइप दिखाते हैं? उसको एडिट करना है, डिजाइन वाला बंदा आराम से कर सकता है. इस पिलर पे कुछ लगाना भी है, मैं फोटो खींच के उसको दूंगा ना, वो बोलेगा कि इस पिलर पे ये लगा सकते हो. तो AI फीचर तो नहीं है ये. जैसे बर्गर पेंट किया देखिए, आपकी वॉल को डिफरेंट कलर हाँ. कर देते हैं. आप लोग भी कुछ वैसे ही करना चाह रहे हो. हाँ, कस्टमाइज मतलब जैसे वो बोले उसके हिसाब से कस्टमाइज. दिस इज नॉट AI. नॉर्मली आप अपने ग्राफिक का एक टूल है फोटोशॉप. आप फोटोशॉप के टूल को ओपन करके उस पर्टिकुलर लोकेशन को डालेंगे ना अगर, और उसके बाद अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज कर सकते हो. दिस इज नॉट AI. मैम बेसिकली ये कैसे होगा, जैसे कि How हम do you लेंस get कार्ड को भी ऐप्स को यूज़ करते हैं, जब हम अपने फेस को पहले स्कैन करते हैं उसमें वो लेंसेज दिखाता है. तो वे उस टाइप के प्रोसेस से वो तो AR था, अभी उन्होंने बताया AR होता है वो तो. हाँ तो कॉस्टिंग निकाल के कोई भी बजट इवेंट करने के लिए क्या कॉस्टिंग का रेशियो होगा? इसके अंदर डिफरेंट टाइप के पैकेजेस रहेंगे कि जैसे कि हम कोई मैरिज करवा रहे हैं या फिर बर्थडे करवा रहे हैं, एनिवर्सरी करवा रहे हैं, उसके हिसाब से इसके अंदर पैकेजेस आएंगे कि जो तुम्हारा हॉल होगा वो कितना रखना है, उसके अंदर टोटल मतलब मेंबर्स कितने आएंगे. वेन्यू आप बताओगे, हम बताएंगे. वेन्यू आपका होगा, हमारा होगा. वेन्यू सर वेन्यू हम ऐसे डिसाइड करेंगे, अगर वो हमें कोई ऑब्जेक्टिव देगा, जैसे अगर उसको कोई सेरेमनी रखनी है, हम उसको ये दे देंगे, अपनी लोकेशन, अपना वेन्यू बताएंगे. अगर उसको हाँ हम बताएंगे वेन्यू उसको, अगर उसको सूट करता है सेटिंग्स, अगर उसको सूट करती हैं तो फिर वो ले सकता है. नहीं हम उसको ये बता देंगे, आप बता दो अगर आपको कैसे करना है, लेकिन ज़्यादा कोशिश ये करेंगे हम उसके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से जैसा वो चाह रहा है वो देना, उस हिसाब से हम सेट करना की कोशिश करेंगे. अपने वेन्यू को उनकी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे फुलफिल करेंगे. दिस इज व्हाट यू गाइस आर डूइंग. ओके, अगर मुझे आपका इफ आई एम योर कस्टमर, ठीक है, सो मुझे आपका वेन्यू नहीं पसंद, मेरे लिए काफ़ी दूर पड़ रहा है, मेरा वेन्यू हो तो चलेगा. चेंजेस क्या होंगे उसके? चेंजेस मैम ये होंगे कि वेन्यू में हम ये कर सकते हैं, हम
लोकेशन देख सकते हैं कि हम वो प्रॉप सूट कर रहा है हमें उस टाइम पे, क्योंकि प्रॉप्स का भी बहुत दिक्कत होता है। आप डेकोरेशन करोगे ना एक तरह से, ये तो कोई नॉर्मल डेकोरेशन वाला भी कर देगा। जो वेन्यू है वो Usually होता ही है। किसी डेकोरेशन वाले को लगे वो आप कैसे डिफरेंट आप किस डिफरेंट किया, और दूसरा आप कह रहे हो कि वेन्यू अगर आपका होगा तो यही काम तो आजकल के बैंकेट हॉल भी कर रहे हैं, वो और वो तो सजा ही होते हैं पहली बात तो अपने आप में। और हम उसमें डिसाइड भी कर सकते हैं हाँ। कि मुझे अगर बैकड्रॉप ऐसा नहीं चाहिए वेडिंग के लिए, नहीं चाहिए ऐसा बैकड्रॉप, एंट्रेंस ऐसी नहीं चाहिए, मेरे को अपने हिसाब के फ्लावर्स चाहिए, अपने हिसाब के डेकोरेशन चाहिए, बैंक्वेट हॉल कर देते हैं ये सब काम तो। आपने मार्केट रिसर्च करी है? What's your name? अच्छा मार्केटिंग नहीं, मार्केट रिसर्च करिए इस चीज के लिए कि ये एक्सेप्टेबल है कि क्या ये Competitors क्या कर हम रहे हैं? competitors क्या वर्ल्ड में ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। बिकॉज जहाँ तक आई नो आजकल के टाइम पे बैंकेट हॉल ने सबको रिप्लेस कर दिया है, सब कुछ लोगों को पैसे देने हैं, केटरिंग लोग ही कर रहे हैं, डेकोरेशन भी कर रहे मैं तो ये बोलने हैं, लगी सब थी कि catering अब भी बोल ये रहे हैं। चलता था पहले टाइम पे, था इसका बूम था, बट अब तो मुझे लगता नहीं इतना है। Actually टाइम ही नहीं है ना किसी के हाँ। पास इतना। तो क्या आप केवल बैंक्वेट हॉल को टारगेट कर रहे हैं या म्यूजिक सर फेस्टिवल लाइव कॉन्सर्ट इन ऑल्सो सबको भी टारगेट लाइव कॉन्सर्ट ये सारी चीजें नहीं बैंक्वेट हॉल कर पाएगा। दे आर कंप्लीट इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, नॉट जस्ट ओनली मैरिज और बर्थडे पार्टी। बीचेस पे सर आजकल फोटोशूट्स हमारी जो कंपनी है वो कॉलेज में फेस्ट होते हैं ना हर कॉलेज में, तो आपको ये पता है कि इवेंट मैनेजमेंट होता है कि सिंगर आता है बाहर से, पीआरटी को से बुलाती है, डेकोरेशन स्टेज एंड एवरीथिंग, फंड रेजिंग, तो एक सजेशन देता हूँ उसको आप थोड़ा प्रिपेयर करना कर लेना। मेरे को कॉमन इंस्टीट्यूट में मेरे को बादशाह को बुलाना है, बादशाह को बुलाना है। ना यू डिसाइड यू टेल मी कि आपको कहाँ पे उसका स्टेज लगेगा, कितना फंड आप रेज करोगे, यू आर अ कंपनी, ठीक है, और आप कॉलेज से कितना पैसा लोगे, आपको लेना, आप मीडिएटर हो, कॉलेज से कितना पैसा लोगे, उसमें से फिर आपका कट मार्जिन कितना बनेगा, और बादशाह कितना लेगा, डेकोरेशन कितना लेगा, और जो भी फूड का कितना लेगा, बादशाह का ट्रैवल कितना लेगा। सोच लो इस पे, सेकेंड राउंड में आप इसका आंसर देना, बाकी अभी क्वेश्चन चलते रहते हैं, बट ये क्वेश्चन का आंसर जरूर है। Thank you. बीजी डार्क होगा ना, तो मेक श्योर कि आपको जो फॉन्ट है वो बड़े हो और वो लाइट शेड में हो, वो दिख नहीं रहा है। Sorry, sir. यार बीजी आप इस तरह से करना कि वो लाइट है। So, good morning, judges. My name is Rohit Vishwas, and my teammate Rajat Jain and Akshita choose this business project, virtual learning. We are grateful to our teachers who gave us opportunity to provide our business idea on this poster. So basically, we choose virtual learning, where we will provide in-demand skills to the individuals, where we teach coding, video editing, and network marketing. That will help them to tackle today's. Is it virtual or is it online? It is online. Online. Yes. Basically, it is online learning. Yes, sir. So why should I choose you? When I can Because, get the sir, videos on YouTube, there are so many videos on YouTube. Which Yes, sir. There are so many videos on YouTube, but we will use a feature that is called virtual. We will use graphic elements to teach our students. Like Baiju's are doing. Yes. मार्केट में कोई कॉम्पिटिटर को याद नहीं आ रहा उसका नाम, कोई क्रैकर है, वो नहीं, क्या नाम है याद नहीं आ रहा। रिसेंटली वो बहुत अच्छा बूम कर रहा है, इसी इंडस्ट्री का है, एडटेक का ये बेसिकली, और यही कराता है। Baiju's भी ऐसे ही कराता है। Baiju's का भी, तो हाँ। मैंने कोई नहीं किया। Baiju's तो गया। Baiju's तो गया। तो आकाश के साथ भी, हाँ। ऑलरेडी इतना कॉम्पिटिशन है, ठीक है, तुम्हारे पास क्या यूएसपी है अपार्ट फ्रॉम दिस? यूएसपी क्या है? बहुत कंपटीशन है इस मार्केट में, बहुत लोग बैठे। कोविड के बाद तो वैसे ही बहुत ज़्यादा है। Yes, ma'am. कोविड के बाद तो वैसे ही बहुत ज़्यादा है। Yes, मैम, कंपटीशन तो हाई है। जैसे मैंने बोला कि मैं विजुअल एलिमेंट्स का यूज़ करते हुए अपने इंडिविजुअल्स को टीच करूँगा, और साथ में हम ये भी देखेंगे कि जो 20% हमारे सीट बुक्स होंगे वो हम जो लोअर बैकवर्ड क्लासेस होंगे उनको हम प्रोवाइड करेंगे विद टेकिंग टेस्ट लेंगे पहले, जो उसके लिए डिजर्वफुल होगा हम उसको देंगे।
और जैसे मेरा एक फ्रेंड है सत्यम, उसने भी ऐसी ई क्लासेस ली है, तो उसने वहाँ पे मुझे एक प्रॉब्लम बताया है कि जैसे सेम कोर्स डिफरेंट प्राइस के साथ उधर जो कंटेंट्स होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, क्योंकि जैसे अगर कोई आपका क्या कोर्स पहले लॉन्च किया गया है और सेम कोर्स बाद में, तो उसमें बहुत डिफरेंस होता है कंटेंट्स में, और साथ में बहुत से वीक्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे क्लास नहीं लिए जाते अनअकैडमी बेसिस तो हम उसी चीज को हेल्प जो माने वो जहाँ पे वो लैब आपको रीजन पता है वो कोर्स का कंटेंट डिफरेंट क्यों होता है? सर प्राइसेस तो होगा ही। अगर कोई मतलब आज लॉन्च हो रहा है, कुछ 6 महीने बाद लॉन्च हो रहा है सेम कोर्स, तो वो कंटेंट दोनों में डिफरेंस होता है, क्यों होता है? कुछ है आइडिया? सर जैसे एक तो ये होता है सर कि जैसे प्राइस का हो जाएगा, मार्केट में चेंजेस टीचर्स भी अलग सब अलग 6 महीने में जो मार्केट में चेंजेस आएगा तो वो कोर्स को अपग्रेड करता है। यस सर। बट इसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास यूएसपी के अंदर, यूएसपी के नाम से कुछ नहीं है। किसी से एप्लीकेशन के लिए बात करनी है, किसी कंपनी से, किसी गवर्नमेंट से, डायरेक्ट वर्क करोगे आप या किसी के साथ टाई अप करोगे? पहले डायरेक्ट वर्क करेंगे फिर टाई अप करेंगे। तो व्हाई शुड आई चूज यू? सी लर्निंग इज समथिंग, मैं कोई ऐसी जगह से चूज करूँ या मैं जहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस हो, ठीक है, और जब यहाँ एक्सपीरियंस भी नहीं है, आप एकदम फ्रेशर हैं, राइट, तो आपके जो ट्रेनर्स होंगे वो कौन होंगे? Who will be your trainers? Who will going to give me the teaching? If I wanna learn coding, so who will going to give me teaching? कौन मुझे पढ़ाएगा कौन? उनका प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्या होगा टीचर्स का, उनकी सैलरी कहाँ से निकालोगे, कोर्स की फीस कितनी रखोगे? बायजूस जब आया था ना, उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बिल्कुल क्लियर थी, उसने इंडिया के बेस्ट टीचर्स हायर करने थे और सबको पढ़ाना था। आपने खुद सोचा है ऐसा आपने कुछ करना है? कौन पढ़ाएगा? कोई टीचर, किसी के साथ कुछ कनेक्शन, या फिर आपने मार्केटिंग किस तरीके से करनी है, कब आपने इसे लॉन्च करना है, प्रायरली आप क्या करेंगे, किस हिसाब से ये चीज़ आएगी मार्केट में? सोचा है? क्या सोचा? जैसे मैम आपने बोला कौन पढ़ाएगा, तो एजुकेटेड मैं जैसे हम ही पढ़ाएंगे, हमने लॉन्च तो हमें कोडिंग की, जैसे हम BCA कर रहे हैं तो हमें कोडिंग की नॉलेज होगी, तो हम भी कराएंगे, और साथ में हम जैसे स्किल्ड अनएम्प्लॉयड वो भी होते हैं अनएम्प्लॉयड स्किल्ड पर्सन, उनको भी हम हायर करेंगे कि वो भी कैसे कनेक्ट करोगे उनके साथ में? मैम लिंक्डइन में बहुत से ऐसे हैं जो सर्च किया है, कुछ देखा है? यस मैम, यूट्यूब में भी जो अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं और चाहते हैं कि हम और अच्छे से एक्सप्लेन करें सबको, तो उनके साथ हम टाई अप नहीं, मतलब हम उनको अपने टीम में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर उनका ऑलरेडी यूट्यूब चैनल है, एज अ पर्सन अगर मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है ना, और मैं अपने यूट्यूब चैनल से अर्न कर रही हूँ, मैं ऑब्वियसली अपना फेस आपको नहीं दूँगी, तो अगर मैं अपना फेस दे रही हूँ तो आप लोग मुझे क्या दोगे? कुछ साल पैकेज डिसाइड किया है? कोई जाना माना पर्सन अगर आपके साथ में जुड़ेगा तो ऑब्वियसली वो बहुत अच्छी सैलरी पैकेज एक्सपेक्ट करेगा, तो कुछ सोचा है आपने कि आपने स्टार्टिंग आपकी कितनी इन्वेस्ट करनी है इसमें? बहुत अच्छी सैलरी होती है, टीचर्स बहुत अच्छी सैलरीज देते हैं। जितना एक्सपीरियंस टीचर होगा उतनी सैलरी होती है। किसको देख के इंस्पायर हुए थे? ये बिजनेस आइडिया Why have you chosen this idea? Virtual learning. मैम मैं होम ट्यूटिंग प्रोवाइड करता हूँ बच्चों को। आप होम ट्यूशन लेते हो? Do you have any YouTube channel also? No मैम, मैं होम ट्यूशन से। तो ऑनलाइन ये वर्चुअल लर्निंग का आइडिया कैसे है बेटा? तो मैम वर्चुअल लर्निंग का इसलिए है क्योंकि बहुत सौ को जैसे मुझे भी नीड थी क्लास 11th या 12th में मुझे भी नीड थी, तो ऐसे मिलते नहीं है, तो अगर ऑनलाइन प्रोवाइड करें तो हेल्प हो जाती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि पर जो मजा फिजिकल में आता है ना ऑनलाइन में नहीं आता। ऑनलाइन तो बहुत सारे होते हैं, स्किलेरा, यूडेमी,
वाइट हेड जूनियर जैसे अभी Physics सर वाला। फिजिक्स वाला प्राइस पर है और हाँ सस्ते प्राइसेस पे यूट्यूब में तो बहुत सस्ता है, 200 रुपए, 99 रुपीज, 100, बहुत ही ज्यादा सस्ता है। बिजनेस एनालिस्ट का कोर्स आई सर्च दैट 500 रुपीस में था उनका। फिर सारी चीजें मैटर करती हैं आपके कंटेंट के ऊपर, आप क्या कंटेंट डिलीवर कर रहे हो। और वर्चुअल लर्निंग कोविड में एक रिक्वायरमेंट बन गई थी, वो रिक्वायरमेंट थी। आज के टाइम में प्रेफरेंस यही होता है कि हम वन ऑन वन इंटरेक्शन करके ही पढ़े, फिजिकल लर्निंग को ही प्रेफरेंस दी जाती है। ऑनलाइन बच्चे पढ़ते नहीं है, वो कैमरे के अंदर क्या कर रहे हैं, नीचे क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं पता, वो पढ़ भी रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। They can share their own experience ना कि अगर गलती से फैकल्टी अगर अवेलेबल नहीं है, they are taking Zoom sessions. So tell me कि आप कितना सीरियसली सुनते हो चीजें? फैकल्टी सही ना कि ओपन योर वीडियो कैमरा, वो भी नहीं होगा। हमारे कॉलेज डेज में तो फैकल्टी बोलता रहता था, कोई ओके नहीं बोलता था, बस गुड मॉर्निंग और गुड बाय बस। एक्चुअली क्या है, कोविड के बाद से बच्चों को हैबिट हो गई है उस चीज़ की। See, your initiative is very good. We appreciate that कि आप कुछ एक चेंज ला रहे हैं सोसाइटी में, बट जो आप मॉडल और जो भी ऑनलाइन दे रहे हैं, इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑनलाइन कुछ ऑफलाइन में ट्राई करो ना। इंस्टेड ऑफ ऑनलाइन दिया और ऑफलाइन भी दिया, दोनों मॉडल। फर्स्ट हमारा ये था कि पहले हम ऑनलाइन स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे ऑफलाइन पे आएंगे। अच्छा छोड़ो, ऑनलाइन स्टार्ट कर लो, मुझे बताओ ऑडियंस कहाँ से लाओगे, स्टूडेंट्स कहाँ से लाओगे, कैसे लाओगे? सब तैयार है, आपके पास कंटेंट भी है, हाँ, ट्यूटर भी है, टीचर्स भी है, सब कुछ कैसे है। अप्रोच करें? टीचर्स कैसे, स्टूडेंट्स कैसे लाओगे? जो हमारे पहले नोन में होंगे स्टूडेंट्स जो लैग कर रहे होंगे, उनको हम बताएंगे कि भाई हम ऐसा कुछ स्टार्टअप कर रहे हैं, तो वो ज्वाइन होंगे, फिर और उनको बताएंगे अगर उनको अच्छा लगेगा, और विल ट्राई टू प्रोवाइड आवर बेस्ट। मतलब आउट टू आउट मार्केटिंग से तुम्हारा काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। एडवर्टीजमेंट वगैरह तो होंगी, और कहाँ एडवर्टाइज करोगे, कहाँ? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। ओके, आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि आपने कोई ऐसा पोर्टल बनाया है जहाँ पे आपका कंटेंट अपलोड हो जाए? सपोज मैं सब्सक्रिप्शन ले रही हूँ, राइट? जैसे कोई भी कोर्स है, आप कोडिंग सिखा रहे हो सी लैंग्वेज की, ठीक है? आपने सारा कोर्स वहाँ डाल दिया, अब मैंने वो कंटेंट का सब्सक्रिप्शन लिया है 3 मंथ्स का, मुझे वो कंटेंट कितने टाइम तक अवेलेबल रहेगा? लाइफ टाइम के लिए या जब तक वैलिडिटी है तब तक? लाइफ टाइम पक्का? इतना डेटाबेस कैसे संभालोगे? हाँ, उसकी भी How कॉस्ट you manage the database? अगर आप लाइफ टाइम दे रहे हो, मैंने एडमिशन लिया आपसे आज 2024 में, ठीक है? तो मेरा आईडी एक्टिवेट हो गया 2024 में, मुझे नहीं पता ना मैं कब तक जिंदा रहूंगी। उसके बाद वो पर्सन डाउनलोड करके किसी को भी दे देगा। डाउनलोड एक्सेसिबिलिटी दोगे? हाँ, डेटा शेयर भी तो हो जाएगा। शेयर हो जाएगा। वीडियो एक्सेसिबिलिटी मतलब वीडियोस भी आप प्रोवाइड कराओगे या फिर सिर्फ नोट्स देंगे? रिकॉर्डेड वीडियोस देंगे। फिर उसके लिए क्या वीडियोस के ऊपर एक आपके जीमेल आईडी और जो जिस उससे हम करेंगे उसका एक लोगो भी चलता रहता है ना, पॉपअप होता रहता है लेफ्ट राइट से, वो यूज लाइफ टाइम एक्सेसिबिलिटी मत दो, ठीक है? जितने टाइम का ट्रेनिंग है ना, इफ इट्स फॉर 3 months give the accessibility of 6 months. If the course is for 1 year give the accessibility of 1.5 year. ठीक है? लाइफ टाइम एक्सेसिबिलिटी मत दे, इसको चेंज करो, ठीक है? और दूसरा वर्चुअल के साथ साथ ही इसको चाहे फिजिकल में थोड़ा कम्पैक्ट में थोड़ा छोटे में ओपन करो, बट वर्चुअल और फिजिकल दोनों तरीके से ऑपरेट करो। अगर ब्रांड बनता है, अगर आगे जाते हैं तो हम वर्चुअली ऑल मतलब पैन इंडिया से हम लोग कस्टमर ले सकते हैं, ठीक है? लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ फिजिकल में जाओगे तो वो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है आपके पास में, और अगर सिर्फ वर्चुअल में रहोगे तो बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें सिर्फ फिजिकल में ही समझ में आता है, वो वर्चुअल में कंफर्टेबल नहीं होते, तो दोनों पे रहोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाइब्रिड मोड रहो। वर्चुअल में है अगर तुम्हारा कोई बैठा केरला में, उसको करना है कोर्स, पेमेंट कैसे लोगे? ऑनलाइन पेमेंट मोड, कोई पेमेंट गेटवे वगैरह वेबसाइट पे कुछ? वेबसाइट पे पेमेंट गेटवे लगाना पड़ेगा, पर्सनलिटीज पे नहीं ले सकते। बेसिकली हमारा मेन ये था कि जो बैकवर्ड क्लासेस स्टूडेंट्स हैं जिनको एजुकेशन प्रोवाइड नहीं हो पाती अच्छे से, उनको पहले फर्स्टली हम डोर टू डोर सर्विस करें, उनसे जाके कनेक्ट हो,
फिर उनको हम लाइक फिजिकली उनको टीच करें और जितना अगर हम चाह सकते हैं उनको प्रोवाइड करें लाइक फ़ोन्स वगैरह। हम एज अ स्टूडेंट भी आर हम कुछ अर्न अपना पार्ट टाइम करके अर्न कर सकते हैं तो उनको हम प्रोवाइड करें अगर इफ़ वी कैन। लाइक जैसे हम इसको ही सेटअप करेंगे उसमें अगर हमें कुछ अर्निंग होएगी तो उससे हम कुछ उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, वो करें। और फिर उनको धीरे धीरे ऑनलाइन मोड पे आएंगे वो लोग भी तो हमें वहाँ पे भी वो कनेक्ट हो सकते हैं फिर और लोगों से कनेक्ट। Thank you. Thank you for giving the opportunity. Me and my teammates Prachi Manav are here from Trinity Institute of Innovation and Professional Studies, affiliated to GGSIP. We are here to present our business plan, Flying Taxi Car, futuristic flying taxi car. जैसे कि हम सबको पता है कि आजकल सब कुछ डिजिटल हो रहा है, तो ये जो हमारी फ्लाइंग टैक्सी कार है ये डिजिटली AI के थ्रू डिज़ाइन करी गई है एंड इससे टाइम सेव होगा, अफोर्डेबल है एज कम्पेयर टू प्राइवेट प्लेन्स एंड बहुत सारे शेप्स में अवेलेबल है। और इसकी जो कॉस्ट है वो $98,000 है। नाउ मानव विल कंटिन्यू। Good morning, my name is Prachi. Now I will talk about what is a flying taxi car. It is a passenger drones which are also known as urban air mobility vehicles. ये वैसे तो फैंटेसी कंसेप्ट लग रहा है लेकिन बहुत सारी प्रोमिनेंट लेयर्स भी हैं इसके जो इसको डेवलप कर रही है नाउअडेज, जैसे कि Hyundai, Uber and Airbus। मैंने परसों पता है एक आर्टिकल पढ़ा था अपने फोन में कि 2026 तक सीपी से गुड़गांव 7 मिनट्स। आप लोग कब लेकर आ रहे हो उसको? सर 2026 में तो जैसे आपको अब आपने पढ़ लिया है कि वो आ ही जाएगा, तो 7 to 8 मंथ्स के अंदर ये वो हो रहा है, मतलब जैसे इस इंडिया के अंदर अप्लाई हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा 7 to 8 मंथ्स के अंदर। इंडिगो ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन ले ली है, इसके लिए आपको पहले बात करनी पड़ेगी, पेटेंट सब बहुत चीजें हैं। हाँ जी, तो फर्स्टली स्टार्ट किया इंडिया में IIT मद्रास से। पहले आप ये सर्विस देंगे? हाँ जी, ये सर्विस हाँ जी। आप ये टैक्सी कार किन से लेंगे? आपके पास तो है नहीं, मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे। हाँ, हमने सर बहुत सारी जैसे कि Hyundai है, Uber है, ये सब ये जैसे कंपनी सर ये अभी इन बिल्ड कर रही हैं, तो अभी जो कंपनीज है वो बना रही है, हम उनसे परचेज करेंगे। देन अगर हम लोग बाहर से अगर हम लोग खरीदते हैं तो यही कार अगर हम बाहर से खरीदेंगे तो $98,000 की है। अब वही अगर हम उसको इंडिया में लेकर आते हैं उन्हीं कार्स को, तो वो कार हमको पड़ेगी 80 लाख रुपीस की, 80.54 लाख की पड़ेगी। सो अगर इतने तो हमारे पास मतलब अभी है नहीं टर्नओवर उतना हमारा, सो हम क्या करेंगे 6.54 उसकी EMI बन रही है, 6.54 उसकी EMI बनेगी, हम लोग उसको परचेज करेंगे। देन पर मंथ हम उसकी EMI उसकी देते रहेंगे एज विद 6.5 उसकी डाउन पेमेंट है। हाँ, और उसके बाद एक फ्लाइंग कार लोगे अभी स्टार्टिंग में सर अभी हम एक ही फ्लाइंग कार लेंगे। मैम को गुड़गांव जाना है, मेरे को नोएडा जाना है, सेम टाइम पे जाना है। हाँ सर, ये भी कॉन्सेप्ट है सर, शेयरिंग कंसेप्ट है इसके अंदर। गुड़गांव नोएडा कैसे शेयरिंग करेंगे? क्या फेंक दोगे मेरे को वहां पे? सर बट लेकिन आप ये सोचोगे सर जाने वाले भी तो लोग होंगे ना, जैसे गुड़गांव सर अब जैसे आप हो, आपका अब जैसे कैब्स हो गई है, वहाँ की कैब दूसरी, पहले हम जहाँ पे हमारी कैब खड़ी होगी वहाँ के अराउंडिंग में अपने कस्टमर ढूंढेंगे, ना कि हम द्वारका वाला कस्टमर उसको हिमानी मैम और सर जो है वो सेम लोकेशन पर हैं, लेकिन जाना दोनों को अलग अलग जगह है, जाना दोनों का अलग साइड है। आप कह रहे हो ना कि जिस जगह से आप बुक कर रहे हो मैं 2 लाख रुपए दूंगा, जिस जगह से आप बुक कर रहे हो ना फर्स्टली उसी सराउंडिंग एरिया से आप आइडेंटिफाई करो। मैम ऐसे होता है जैसे फ्लाइंग कार है, तो फ्लाइंग कार से तो हमको पता है कि ट्रैफिक भी रिड्यूस होगा और उसका टाइम भी कम लगेगा। वो जल्दी पहुंचना है, वो ज्यादा उनको भी जल्दी पहुंचना है, पर मैं ज्यादा वो दे रहे थे, मैं वो 2 लाख दे रहे, मैं 1 लाख नहीं, फर्स्ट
सब बेसिस है। अच्छा मेरे को इसके लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है, लाइसेंसेस बता दो कौन कौन सी कहाँ के लाइसेंस। नहीं मुझे उससे पहले एक चीज पूछनी है। आपने बोला कि ना नीचे चलेंगे तो ट्रैफिक होगा। हाँ। एक बात बताओ, जब ये कार आ जाएंगी आसमान में उड़ने लग जाएंगी तो आसमान में भी ट्रैफिक हो जाएगा। वो तो बट ट्रैफिक पोल्यूशन भी होगा। ये है कि- कैसे जल्दी पहुंचाओगे? मैम ये तो फिर वो वाली बात है कि ज्यादा हाइट पे ले जा सकते हो? ज्यादा हाइट पे नहीं जाएगी। ज्यादा हाइट इसकी मैक्सिमम हाइट है सर जल्दी 5 to 6 इसकी कैपेसिटी है। इसमें से 1-4 पायलट है, बाकी 5 to 6 इसके अंदर पैसेंजर्स आ सकते हैं। हाँ तो वन चार्ज में 10 to 15 सर ए इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सारा ए के जैसे आजकल कार्स में सारा ए स्ट्रक्चर आ रहा है, आपको पता ही है। विद वन चार्ज 760 किलोमीटर चलती है, 760 किलोमीटर वन चार्ज में। और जो इसका वो है वो इसकी किलोमीटर पर आवर है, वो है इसकी 180 किलोमीटर पर आवर। अब बट इसको हम लोग 200 किलोमीटर पर आवर पे भी इसको हम लेके जा सकते हैं अगर ज्यादा जल्दी पहुंच गए। जैसे आप कह रहे हो कि आपने द्वारका नोएडा हम 200 मिनट गाड़ी चला लेंगे और सबको पहले छोड़ेंगे। मतलब ये एक तरह से ई-रिक्शा टाइप है ना, चलता फिरता हवा में। चलता फिरता सर अभी टैक्सी लिखा है ना हमने कि टैक्सी तो वही हो गया ना कि एक जगह से दूसरी जगह। जैसे हाँ। ऊपर का हम नीचे वाली टैक्सीज हैं लैंड वाली वो 200 ले रही है तो इसका डबल होगा। डबल होगा, ओनली डबल। 400 रुपए नहीं जैसे ये है कि आप 6 रुपए ये में कैसे भरोगे फिर? यही सेम क्वेश्चन बस पूछने वाली थी कि कहां से भर रहे हैं आप किस रूट पे चलाएंगे? ऊपर रूट फाइनल किया, ऊपर सीपी बनाएंगे, डेस्टिनेशन तो फाइनल होगी ना सर। जैसे भी आपने पढ़ा कि दिल्ली से लेके मद्रास तक वो जा रहे दिल्ली से गुड़गांव, सॉरी दिल्ली से गुड़गांव तक क्या चार्ज लेंगे आप? अप्रॉक्स कुछ आइडिया? अभी तो हमने वैसे ये तो इसने एग्जांपल बताया था तो एग्जांपल में मत जाना तो बट जो एक कॉस्टली है वो 1 लाख अप्रोक्स आएगा। 1 लाख एक बार आना जाना। सर जो कहां से कहां जाना? दिल्ली मेरे को सीपी जाना है, अगर तुम्हें को 1 लाख देना होगा। 1 लाख रुपए नहीं, पैदल चली जाऊंगी मैम। जिसके पास 1 लाख अप्रोक्स बोला ना तो अप्रोक्स में जितने मर्जी आ सकते हैं। 1 लाख कैसे जाएगा? ठीक लगा टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर टैक्सी कार अगर आ भी रही है ना, एक्चुअली में इतना एम्प्लॉयमेंट और इतना सैलरी पैकेज कहीं नहीं बढ़ता है। मैक्सिमम है 2000 सैलरी 1 लाख है मैम। 1 लाख और सैलरी अगर हम नॉर्मल मिडिल क्लास की बात करेंगे ना तो मिडिल जो अर्निंग है वो मैक्सिमम है 40 to 50,000 की रेंज की, जो ज्यादा लोग हैं और ज्यादा जो ट्रेवलिंग है जिनके पास अपनी खुद की पर्सनल व्हीकल से अगर वो ट्रेवल नहीं कर रहे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले रहे हैं, 30,000 जो ज्यादा है 30,000 से 60,000 के बीच के हैं, तो वो लोग 1 लाख रुपए देकर नहीं ट्रेवल करेंगे। ठीक है, वो धरती से ही जाना प्रेफर करेंगे। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि 1 लाख अप्रोक्स का क्या मैं बताना चाह रहा था। 1 लाख अप्रोक्स ये हो गया जैसे अब क्या जैसे आप गए और आप वापस भी आओगे तो मतलब आपने 2000 आप कह रहे हो कि 2000 आप दोगे तो आना जाना आपका 4000 रुपीज हो गया। तो आना जाना तो हम लोग 1 मंथ के लिए वो स्कीम स्टार्ट कर देंगे। 1 मंथ के लिए आपको पिक एंड ड्रॉप वो हो जाएगा। 1 मंथ तक आपको 1 लाख रुपीज हम एक ही बार लेके, ताकि हमारे पास भी वो सिक्योरिटीज रहे। 80,000 में 1 लाख इसको दूंगा, 20,000 को डेट सर फिर नीचे कैश भी चल रही है सर। फिर हवा में रह लूंगा, काम करो सर फिर नीचे कैब पे तो चल रही है, फिर जिसका पैसा नहीं है वो कैब से जाए, जिसका पैसा है वो इससे जाए। बात भी तो सर वो वाली बात है ना। वेरी गुड, दिस इज व्हाट आई लाइक। जिसके पास पैसा नहीं है वो पैसा है कैब वो से, फायदा उठाए, हाँ जिसके पास पैसा नहीं है वो कैब से जाए, मेट्रो से जाए, बस से आपको जाना था। जाए। हाँ वही वाली बात है बस। अब जैसे सर जैसे आप कह रहे हो कि 1 लाख रुपीज सैलरी है, बट लेकिन मेरे अंकल है उनकी 7 लाख रुपीज सैलरी है, तो आराम से इसको अफोर्ड कर लेंगे कि 1 लाख रुपए में आना जाना। 7 दिन में खत्म कर सर 7 दिन की बात नहीं है, 1 महीने की बात है, वो भी आना जाना पिक एंड ड्रॉप। इसमें आपको एक प्रॉब्लम अच्छा है। तो रूट भी तो आप डिसाइड करोगे ना कि अगर आप 1 लाख ले रहे हो तो रूट डिसाइड करोगे ना कि ये कौन सा पैकेज है 1 लाख का। नोएडा का है, दिल्ली से नोएडा का है, दिल्ली से गुड़गांव का है, या किसी का सीपी में ऑफिस है उससे भी 1 लाख लोगे, नोएडा वाले से भी 1 लाख तो नहीं होगा, बट हम पैकेजेस बना लेंगे। अभी तो खाली हमने सोचा था टैक्सी, अभी तक बस एक नॉर्मल आइडिया लिया हमने। पहले इसको लॉन्च होने दो इंडिया में, पहले इसको आने दो, इसका चलने दो, उसके बाद आई वुड से कि तब आप कुछ कर बट कॉस्ट थोड़ी कम कर पाएंगे और आइडियाज इनोवेट पहले बिग प्लेयर्स को उस पे खेलने दो सर, तब तक फिर कंपटीशन हो जाएगा। कंपटीशन नहीं, सबसे बड़ा चैलेंज आएगा लाइसेंस।
लाइसेंसेस पता कितने हैं इसके? मेरा क्वेश्चन वही था, कितने लाइसेंसेस हैं? रिसर्च करिए। 4 लाइसेंस तो मैंने अभी देख लिए। 4 लाइसेंस फॉर फ्लाइंग। हाँ, जो चलाएगा उसका अलग। वो तो पायलट का तो हाँ, होगा। तो एविएशन पुलिस से अलग लाइसेंस। सैलरी भी देंगे। हाँ। उसकी कॉस्ट आपने जोड़ी है जो 1 लाख का पैकेज बताया। फ्यूल नहीं है। हाँ, पहले सबसे पहले वही बात है इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक चार्ज भी वो सोलर के थ्रू ही है। सोलर का है। हाँ। सोलर पैनल। इसमें इंश्योरेंस भी दोगे लोगों को जो ट्रैवल करेंगे? हाँ, कुछ हो गया। उसमें हमने ये रखा है कि पहली बार इलेक्ट्रिक कार में आग लग जाती है, ऊपर आग लगी, वैसी हवा भी ऑक्सीजन भी सब आग लगी, ऊपर ही आग लगी। नहीं, अब एक अच्छी चीज बताओ, इलेक्ट्रिक ये फ्लाइंग का है, ठीक है, फ्लाइंग टैक्सी जो नॉर्मल रूटीन डेज है वो तो ठीक है, जब बारिश आ गई तभी उड़ेगी। नहीं अब क्यों एरोप्लेन तो होता है सर मैम, अगर हैवी रेनफॉल होती है तो एरोप्लेन्स और सब फ्लाइट डिलेज हो जाती है। सिर्फ रेनफॉल बोला था, आपने कैसे अज्यूम कर लिया कि वो हैवी था? ओके, रेनफॉल में तो अगर धीरे हो गए तो आराम से उड़ ही जाएगा। बहुत अगर गर्मी है, जैसे दिल्ली में बहुत गर्मी है तब भी आराम से हीट नहीं लगी गाड़ी हमारी। और ज्यादा चांसेस है गाड़ी में आग आग लगने लगने के बाद हो रहे इलेक्ट्रिक अब इलेक्ट्रिक बाइक वो हीट की वजह से ज्यादा हीट हो जाएगी सर, बट किलोमीटर भी तो कम ही है ना, क्योंकि खाली पास में घूम रहे हैं। यानी कि हम लोग इन्होंने खुद अप्लाई किया कि अगर 1 चार्ज में 740 किलोमीटर चल रही है तो बात भी तो वही अगर 740 किलोमीटर अगर ये इतना पास वाला डिस्टेंस है तो इसको चूज ही क्यों करेंगे? दूर वाले तो जाएंगे इसमें। डिस्टेंस दूर होगा बट टाइम वो कम लेगा एज कंपेयर टू कैब। जैसे गुड़गांव दूर तो है बट इट विल टेक। मैम जैसे हम यहाँ से गुड़गांव तक जाते हैं 3 आवर्स हमको मिनिमम चाहिए थे, बट इसमें ओनली 15 मिनट्स या जस्ट 20 मिनट्स। किधर से किधर तक? सीपी टू गुड़गांव कहीं भी सर जाना हो। देखो आप बोलूं, मैं ना आई लिव इन नोएडा और मैं मेरा ऑफिस नेहरू प्लेस में, मैं सुबह 30 मिनट में ऑफिस पहुंच जाता हूं सुबह बाय कार। तो मैं सुबह जल्दी उठ के जल्दी नहीं जा सकूं, मेरे पैसे ही बच रहे हैं। और सीपी टू गुड़गांव तो मैं फिर भी 20 मिनट पहुंच जाऊंगा सुबह, रोड सुबह खाली रहते हैं। बट सर अगर किसी का अगर 11-12 बजे अगर स्टार्ट हो रहा है ऑफिस, सर वो सुबह जाके क्या करेगा हमारा? शिफ्ट टाइमिंग सर जिसका 2 बजे ऑफिस स्टार्ट हो रहा है वो सर सुबह 8 बजे जाके वहां पे सर मैं तो एक नॉर्मल हमारी कन्वर्सेशन कर रहा हूँ कि ऐसा थोड़ा हो सकता है, बट अब जिसको उस आर्ट्स में जाना है तो सर वही यूज कर सकते हैं। इसको पता है तुम कहाँ यूज कर सकते हो जहाँ तुम्हें ज्यादा प्रॉफिट होगा, इसको डालो हॉस्पिटल्स के साथ। मेडिकल सर इमरजेंसी में भी ये मैं आगे उसी पॉइंट पर आने वाले थे कि जैसे आपने बोला कि गाड़ी में आग लग जाती है तो कस्टमर का क्या होगा, है ना? तो हम पहले तो इसके अंदर सारे इनबिल्ट उसके अंदर वो हैं पैराशूट्स उनके अंदर होंगे, तो फ्री में फ्री में हो रही है मतलब एक तरह से। सर अगर जान जा रही है तो उससे ज्यादा सर वो तो हमारे को है अपना रखना पड़ेगा ना। जैसे फ्लाइट्स के इसको मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जोड़ो, किसी को फ्रैक्चर हो गया वो नहीं चल सकता, उसको पैराशूट बांधेगा वो। ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना, ये इसमें आपको पता है हार्ट ट्रांसप्लांट होते हैं तो कई इंटरसिटी कराने, तो ये काम आएगा वहां पर आपका। और हॉस्पिटल वाले अच्छा मेडिकल इमरजेंसी की केस ज्यादा प्रॉफिट देगी, वो ज्यादा प्रॉफिट देगी। बजाय कि इसको पैसेंजर में यूज करने से इसको मेडिकल इमरजेंसीज में यूज करो तो ज्यादा पैसेंजर के लिए बहुत कुछ है। ऐसी प्रेफरेंस ना इमरजेंसी के लिए यहाँ पे ऐसा जैसा कुछ नहीं हो, और एम्बुलेंस के लिए भी ना हम जैसे ही लोग होते हैं जो रोड पे होते हैं और एम्बुलेंस का सायरन बजता है, स्टिल हम लोग हिलते तक नहीं है वहाँ से, एंड इट्स गोना टू बी वेरी डिफिकल्ट। तो अगर ये चीज हम इमरजेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करेंगे ना तो ये बहुत बेनिफिट है, बहुत ज्यादा। और उसके अंदर गवर्नमेंट की सब्सिडीज भी मिल जाएगी। और आपका 6 साढ़े 6 का आपका ईएमआई भी जा रहा है, आपको वो भी सब देखना पड़ेगा। साथ में वो मेंटेनेंस भी है, ड्राइवर का कॉस्ट, हां वो सब भी आपका है, कॉस्ट अलग, कंपनी रन करोगे उसका कॉस्ट अलग। मेडिकल में चार्ज भी ज्यादा ले सकते हैं। हां मेडिकल में सर वैसे पैकेजेस में आप सही कह रहे हो कि पैकेजेस में उसके पे भी ज्यादा होता है। जैसे कहीं से अगर जैसे रैपिडो ही आजकल चल रहा है तो अगर कहीं से अगर कहीं बंदा लेके जाना है तो उसके चार्जेस कम है, बल्कि पैकेजेस भेजने तो उसके चार्जेस ज्यादा है, पैकेजेस ज्यादा है उसके। तो आप फॉरवर्ड क्या पता ये चीज रिप्लेस कर ले आपके एम्बुलेंस को गोइंग फॉरवर्ड, क्या पता हो सकता है, ये भी हो सकता है। आइडिया आपने, थैंक यू फॉर आइडिया। हां फिर किसको दुकान खोलनी पड़ेगी जाके। बाकी ये बोलने वाला था। और क्या बोलना कुछ नहीं। हाँ, और ये हमारी डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट साइजेस में भी हमारे पास वो होंगे अवेलेबल। जैसे अभी तो हम एक खरीदेंगे क्योंकि हमारे पास अभी कैपिटल इतनी है, अगर हमारे को इन्वेस्टर्स कहीं से मिल जाते हैं, हमारे पास
कोई होगा जो हमारे पे इन्वेस्ट कर सकता है, देन हम लोग उसके मतलब स्मॉल साइजेस में, जैसे आप कह रहे पैकेजेस भी हम भेज सकते हैं, तो स्मॉल साइजेस में हम लोग ये खरीद के उसको हम उसमें ट्रेड में हम काम कर सकते हैं। कितना बड़ा होगा ये इस रूम के सर हाँ, ये सबसे मेन बात रह गई थी कि सर इसको इतना बड़ा तो नहीं है इतना बड़ा नहीं होगा, छोटा होगा। सर। इसके अंदर 4 व्हील्स होंगे, बता सर, इसके अंदर 4 व्हील्स है और 2 प्रोपेलर्स है जिसके थ्रू ये हवा में एयर में उड़ेगा, ठीक है। अब इसको टेक ऑफ के लिए 500 मीटर्स जगह चाहिए, टेक ऑफ के लिए 500 मीटर्स चाहिए। देन क्योंकि इसके अंदर वो उसके थ्रू है, क्या कहते हैं, आपको मैं पीपीटी जब हम अपनी दिखाएंगे, आपको पीपीटी दिखाएंगे, उसके अंदर हम सारी वीडियोस और सब कुछ हमने पूरा दिखाया है कि कैसे उसमें वर्क करना है, कैसे वर्क नहीं करना, आपको सब हम पीपीटी में पूरा डिटेल में दिखाएंगे। बाकी थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Next team. Sir, good morning, ma'am, and our respected teachers. And my name is Harsh Sen. And my name is Nitin Kumar. And we both are pursuing BBA from Kamal Institute of Higher Education and Advanced Technology. Today we are here to present our business idea, which is based on balloon decoration to make your party special and attractive, and we named it as Balloon Buddy. Basically, Balloon Buddy means balloon indicates the focus of our business, and it is easy for others to know which business we belong to. And buddy means partner, which can help us, and buddy also we can say our friends. So we can name our business. Name it as a Balloon Buddy, and if you are talking about our Balloon Buddy of our business, basically it is a business that transforms our ordinary spaces into an extraordinary celebration. Our team of skilled designers can work with multiple customers. आप दिल्ली में सर्विसेज देते हैं? Yes, sir. Daily services है। दिल्ली में सर्विसेज आप ये जैसे बलून्स लगाते डेकोरेट करते हैं। नॉर्मली बलून से हम जैसे डेकोरेट कर सकते हैं, क्या क्या हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं, बलून से एक इवेंट को कैसे हम स्पेशलाइज कर सकते हैं। कितना चार्ज लेते हो? Sir, our basic decoration starts from 1000 and last goes to according to startup. Last goes to 5000. And sir, इसमें ऐसा सब जैसे कि इवेंट कैसा है, क्या इवेंट कौन सा किसी का हो रहा है, बर्थडे पार्टीज हो गया, वेडिंग इवेंट्स, नॉर्मली जो भी इवेंट्स होते हैं, उसके हिसाब से जो कॉस्ट हमारी बैठेगी, जो भी प्रोडक्ट्स हम सब अपने साथ बाय करेंगे या फिर हम क्या में बाय कर रहे हैं अपना पूरे हम अपने क्या कॉस्ट लगा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट का कुछ है नहीं, इन्वेस्टमेंट ऐसे नहीं, मतलब Sir, there is personal savings investment like and कि अगर हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि हमें कुछ हमें ऑर्गेनाइज करना है, कुछ इवेंट डेकोरेट करना है, तो उसमें हमारा कितना एक्सपेंस हो रहा है, उस हिसाब से उसी तरीके से मतलब हम अपना आगे अपना अभी कितने वो करे प्रोजेक्ट आपने? Sir, around 6 to 7. ये भी आपने कर लिए? हाँ। अभी आगे कितने पाइपलाइन में है? Actually, there is no. नोएडा में भी करते हो? No, sir. नोएडा में नामों का होगी नहीं? एक्चुअली हमने इसमें क्या कर रहे थे, हम अपने लोकल एरियाज में हम जैसे कि इवेंट प्लानर्स हो गए, पार्टी प्लानर्स हो गए, वेडिंग में जो प्लान कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, हम उन सब कोऑर्डिनेट कर करके अपने कार्ड्स हमने जैसे कर रखे हैं, बाय ऑनलाइन हमने Basically, still our business on online platforms only. मैं पूछ रहा हूँ कि मैं नोएडा में जुलाई में की मैं एक पार्टी कर रहा हूँ, तो आई वाज थिंकिंग कि आप लोगों में एक कॉन्ट्रैक्ट, तो इसलिए मैंने पूछा कि आप लोग करते हो नहीं करते। Sir, basically we have not enough team members, so. अगर कम टीम मेंबर तो तब भी जा सकते हो? Yes, हम जा सकते हैं। That is the question कि सर पूछ रहे हैं। स्टार्ट मैम एक्चुअली हमारे स्टार्टर एक तरह से, तो अभी हम दो बडीज हैं, तो हम इसको अपने थ्रू ही कर सकते हैं। देखो अभी तो आपको दिल्ली का लोकल एरिया मिल रहा है, इस सर इज गिविंग यू द अपॉर्चुनिटी कि आप नोएडा में जाओ। दिल्ली में सर्विस दे रहे हो और नोएडा में दे रहे हो तो आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? Sir, traveling and basically. अगर उस दिन आपका कोई इवेंट नहीं है, फिर why can't you travel?
Sir, but it depends. अगर क्या आपको इक्विपमेंट बहुत हैवी है जो ले जाना है? नो सर, इक्विपमेंट हैवी की बात नहीं, पूरा बट पूरा दिल्ली एनसीआर जैसे में नहीं एक्सप्लेन कवर करो। सर एक्चुअली अगर दिल्ली एनसीआर बेसिकली हम कवर कर लें, लेकिन उसके लिए हमारे पास में इनफ टीम मेंबर्स भी होने चाहिए। अभी एज अ स्टार्टअप हाँ अभी कितने हर्ष, सपोज इस रूम को डेकोरेट करना है, कितने मेंबर चाहिए और कितना टाइम लगेगा? इस रूम के लिए तो आप सर अगर हमें इस रूम में डेकोरेट करना है, कितने टाइम में आप इसे डेकोर कर देंगे? सर मैक्स टू मैक्स कि हम अगर वहाँ पे एरिया बड़ा है तो हमें टीम आप ये हाँ अगर हमारे कर रहे हैं कि वहाँ पे एरिया बड़ा, हमने तो ये होता है कि वेन्यू आपका बस नोएडा है। अगर मेरी पार्टी शाम की है, मैं आपको सुबह को लाता हूँ, तो बस एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम में आप 3 जो आपके बैंक में होना आराम से करो। It's my suggestion. You can hire helping hands. Yes, sir. Okay, on a daily basis. जिस दिन आपका इवेंट है, आप उसको गाइड कर दीजिए। Helping hands इजीली आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इस दिन है, आप आ जाना उस दिन का उसको। दो हायर करो, दो आप हायर करो। 500,000 में दो तो डेली वेज वो आ जाएगा। डेली वेज पे आपका आ जाएगा, आप उनको भी हेल्प होगी। ऐड होता है इवेंट। और तुम इसको अभी बड़े इतना अच्छे से एक्सपैंड नहीं है बिजनेस, तो अभी परमानेंटली सैलरी पैकेज पे हायर करने की जरूरत नहीं है। एज पर सर आइडिया डेली वेजेस पे हायर करो। जिस दिन आपके पास में ज्यादा है, मतलब कि वर्कलोड ज्यादा है, उस दिन के लिए स्पेसिफिकली हायर कर लो। और ऐसा तो होता नहीं है कि आज रात को मैं बोल रही हूँ कि कल आना है। ये तो कभी कभी होता है कि आज रात मैंने इंस्टेंटली बोला कि आपको कल डेकोरेशन के लिए आना है। अदरवाइज तो प्री प्लान होता है, 15 डेज या फिर 1 वीक पहले इंफॉर्मेशन आई जाती है। सो ऑप्शन है आपके पास में, कहीं का भी ऑर्डर है, जस्ट टेक इट। इसी तरीके से तो आप के बारे में पता चलेगा ना सबको। क्योंकि अगर नोएडा में लगेगा कि नोएडा में मार्केट बन जाएगी वहाँ पर, लोग पूछेंगे किससे करवाया, तो मैं नंबर शेयर करूँगा ना, फिर आप आगे जाकर। और अगर सर सोसाइटी में है, सोसाइटी आप में रहते हो और भी फैमिलीज होंगी वहाँ पर, they will also invite you। इसका नंबर है इसमें सर, we'll give you a call in July। पहला ही बुकिंग ले लीजिए। Congratulations। एक्सपेंशन का क्या सोचा है? कैसे एक्सपेंशन करोगे? सर एक्सपेंस के हम जैसे सोचे कि ज़्यादातर जैसे अब कोई इवेंट हमें कोई इवेंट कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, अगर हमको कुछ इवेंट मिल रहा है तो उसमें ज़्यादातर एक्सपेंस क्या कर सकते हैं? जो भी प्रॉफिट जो भी हमें लगाना होगा तो हम एक्सपेंस तो अलग करेंगे। बाकी हम लोग आपस में अपने तो मिला रखे हैं हमने, तो जैसे कि हम अपना एक्सपेंशन का पूछा, मतलब आगे कैसे बढ़ाएंगे? Sir, we can expand our business by online preferences, by local marketing, by local networking, and referral by customers. And in future, we can also add Google Ads and Facebook Ads when we get opportunity. Yes, sir. ये बैलून बड़ी प्रॉपर्टी आपने ली है, Instagram पर इंस्टा पे रजिस्टर्ड है। Insta पे registered, Insta and Gmail. It is working. Yes, it's working. Yes, sir. इनमें फोटोज भी डाली, वीडियोस भी डाली। इंक्वायरी इंस्टा से आती है और कहीं से भी आती है। By calls, by WhatsApp. इंक्वायरी से आती है। Yes. आपने जिनके यहाँ पे काम करा वो आपको दोबारा ही करके बुलाते हैं, कभी मुझे लगा कि दोबारा का रेपुटेशन कितना हुआ है अभी? हाँ. रेपुटेशन हाँ, कितना हुआ है? रीच आउट करा आपको दोबारा। ठीक है. 3 times। एक ही पर्सन ने 3 बार आपको बुलाया। Yes, ma'am. फर्स्ट टेल मी वन थिंग कि कितना एक्सपेंस पड़ जाएगा थीम के अकॉर्डिंग? 3 डेकोरेशंस के अकॉर्डिंग. थीम डेकोरेशन. जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, अभी रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड के यहाँ पे बेबी बॉय हुआ, तो उन्होंने बेबी को वेलकम करना था हॉस्पिटल से लेके, सो दे वांट की डेकोरेशन कराई जाए, ठीक है? तो 2 फ्लोर्स पे करके दोनों डेकोरेशन कराई थी। अगर आपको सेम ऑप्शन मिलता है तो क्या चार्जेस लोगे? 4,000 टोटल। इसमें बैलून सब कुछ आपके बैलून्स मतलब जितना भी मटेरियल्स ऐड मतलब यूज होगा सब हमारा. फ्लोर करना है, पूरा फ्लोर करना है कि फ्लोर कितना बड़ा है, 100 गज का है, 50 गज का है, 250 गज का है, एरिया तो पूछो। डिजाइन से बताओगे ना, डिजाइन का डिजाइन चाहिए आपको। नाम होता है ना कि वेलकम डिजाइन भी होते हैं उसकी, बेबी का नाम लिखना है, लड़का है लड़की है, लड़का है होगा उसके अंदर, उसका कलर कैसा चाहिए आपको, क्या पैटर्न फॉलो करना है। हम कोई डिजाइन दिखाए उसके बेसिस पे बना दो। बैलून है नेक्स्ट राउंड देखिए। अच्छा एक चीज और, अभी ना इवेंट कोई मैनेजमेंट की कंपनी आई थी ना, यू गाइस विल कोलैबोरेट, जस्ट गिविंग यू एन आइडिया, क्योंकि वो लोग इवेंट मैनेजमेंट पे देख रहे हैं। इफ यू वांट आपको कोलैबोरेट करके कुछ टीम अप करके कुछ कर सकते हो, जैसे उनका कुछ है आप भी कर सकते हो।
एक्सपेंशन में ये देखो अपने आसपास से जितना लोकल इवेंट मैनेजमेंट वाले हैं ना जो ऑलरेडी फेमस है जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं उनसे कनेक्ट करो, उनसे बोलो कि पार्टनरशिप कर लो कुछ अपना। इधर काफी बैंकेट हॉल देखा आपने, काफी सारे बैंकेट हॉल है इधर। पीड़ागढ़ी वाली साइड है आपका, मायापुरी वाली साइड है बैंकेट हॉल, वहाँ सब में जाओ सबको बोलो थोड़ा सा अपना काम दिखाओ मैं कि हमने ये काम किया है और हम लोग स्टार्टअप है सर्च कर रहे हैं, तो अगर आपको रिक्वायरमेंट हो प्लीज कॉन्टैक्ट अस। ऐसे एक्सपैंड कर सकते हैं। Basically, I can try also, but and even I give them my visiting card also, but they can. फॉलो अप भी के फिर आप फॉलो अप नहीं कर रहे, दोबारा जाओ, हमारा वो है कि हम दोबारा नहीं जा पा रहे वहाँ पर थोड़ा हाँ जाओ, फॉलो अप नहीं लोगे ना तो वो आपका आप आज आप आए, कल मैं आया, परसों मैं हमारी तीनों से कंपनी के आए, मैम फॉलो अप कर रही है, मैं नहीं कर रहा तो मैं अच्छा यार ये तो डेली आ रही है, चलो इनको चल चांस दे देते हैं, ये तो कल फिर आएगी। हाँ उनको लगा यार ये डेली आ रही है यार तो दे देते, दे एक देते, दिन तो दे ही देते। एफर्ट थोड़ा सा हम एफर्ट नहीं मार एटलीस्ट पा एक रहे दिन हैं। मिल जाएगी ना, उसके बाद आपको कोई बुलाएगा, वो आपके काम पे बुलाएगा। जी सर। एक डील मिलना इम्पोर्टेंट होता है सेम जगह पर, उस जगह पर कहीं पर भी आप एक डील ले लो, ठीक है, मेरा फिर उसके बाद तो मेरा काम बोलेगा, उसके बाद मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, पर मेरा काम बोलेगा। अपना एक ना एक लड़का है वो सेल्स का, उसके साथ 2-4 मीटिंग में जाओ, उसके बाद उसको रोल भेजो, चाहे तुम्हारी कॉस्टिंग महीने की 10,000 की फिक्स हो जाएगी 10-15,000 की, बट उसको भेजो रोल, उससे जाके तुम्हारे लिए इवेंट कंपनीज में बात करें ताकि तुम्हारी तुम लोग तो यहाँ बिजी रहोगे, वो बात करेगा तुम्हारे लिए, फिर तुम्हारा रीच बढ़ जाएगा। और एक चीज़ क्या कर सकते हो आप, जो देखो बैलून से डेकोरेशन बहुत हैवी जगह नहीं होता, जैसे बड़ी मैरिज सेरेमनी इन सब में बैलून्स नहीं प्रेफरेंस, ठीक है, हाँ किटी पार्टी बर्थडे पार्टीज, और तो आपको आपके ना B2C ज़्यादा आपका जाएगा, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, स्पॉन्सर्स कर सकते हो, कॉलेजेस में इवेंट हो रहे हैं आप वहाँ पे आप बोलो कि वी कैन डू, आपका 500 का 1000 का खर्चा होगा, लेकिन कॉलेज में अगर 200-300 बच्चे आ रहे हैं और 2 मिनट का भी आपको प्लेटफॉर्म मिल गया, आप 500 रुपये में 1000 रुपये में 200 लोगों तक पहुँच सकते हो, आप QR कोड वहाँ पे दे सकते हो, आपको वहाँ से रीच बढ़ सकती है। इस तरीके की अगर दिल्ली के सारे कॉलेजेस के छोटे छोटे इवेंट भी आप मैनेज कर देंगे, आपकी आप रीच वो मिल जाएगी विदाउट एनी, थोड़ा सा आपका ये एडवर्टीजमेंट कॉस्ट हो सकती है, लेकिन वहाँ पे आपको कस्टमर्स मिल जाएंगे। ये डिजाइन मैंने कर दिया, जैसा डिजाइन ठीक है, नेक्स्ट में मिलते हैं आपको। थैंक यू Thank you, sir. Thank you for giving this opportunity to show my business idea. So due to some reason, my team does not able to come. Nice creative. Thank you, sir. Who have created it? So my Who has created? Who has किसने created बनाया? this? सर हमारी टीम ने पूरे ने चारों बंदे ने बनाया। अच्छा। सो हमारा प्लान है वर्चुअल इवेंट प्लानिंग बिजनेस का, और हमने अपना नाम सोचा है वर्चुअल इवेंट प्लानर्स, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, एक ऑनलाइन बिजनेस सर्विसेज है जो हम क्या करते हैं, जैसे जूम पे आपने देखा होगा इवेंट्स होते हैं, जैसे आपका वेबिनार्स हो गए, सेमिनार्स हो गए अलग अलग उसके कंपनी के, तो ये हम ऑर्गेनाइज कराते हैं। इसमें क्या रहेगा कि इसका जो बूम है वो कोविड के बाद आया है, क्योंकि कोविड से पहले सारे लोग ज़्यादातर होटल्स या फिर बैंक्वेट हॉल्स में अपना इवेंट ऑर्गेनाइज कराते थे, बट कोविड के बाद जैसे कोविड आया सारा लॉकडाउन हो गया, उसके बाद हुआ क्या कि वो उनकी मजबूरी बन गई थी कि ऑनलाइन उनको कराना ही कराना है इवेंट। अब हुआ क्या, उसके आने से वो उनको कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है ऑनलाइन कराना, तो उससे हुआ क्या, अभी इंडिया में इसकी जो मार्केट है वो 88 बिलियन रुपीज़ की है, और ग्लोबली ये 300 बिलियन प्लस है डॉलर में, ये बहुत बड़ा मार्केट है और ये आगे काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेगा। एक चीज़ बताओगे, आप इवेंट प्लानिंग करते हैं या मैनेजमेंट करते हैं या क्या करते हैं, या इसमें क्या मार्केटिंग प्रमोशन भी करते हैं? हाँ सर, देखो सर, अभी जैसे हम स्टार्टिंग है तो अभी आपने भी देख रहे हो प्लेटफॉर्म सेटअप, नॉर्मल आपने क्या सुना है, जूम सुना होगा, गूगल मीट सुना होगा, माइक्रोसॉफ्ट टीम सुना होगा। सो हमारा क्या है कि हम अपना सेटअप हम अपना खुद का लाना चाहते हैं। जैसे सर अब मैं आपको बताऊँ तो कॉम्पिटिटर्स का आप पूछोगे, अब जैसे टैक्सी सर्विसेज है, आपके पास 2 नाम आएंगे बड़े, ओला, उबर, ये क्यों आएंगे, क्योंकि ये बड़े ब्रांड है, इन्होंने अपने आप को मार्केट करा है बड़ा। सो ऐसे हम भी चाहते हैं, अगर ये मैं आपसे पूछूँ कि आप एक कंपनी हो,
अब आपको एक इवेंट ऑर्गेनाइज कराना है वर्चुअली, आपके पास कोई नाम नहीं होगा लेकिन आपको कराना है, और एक कंपनी जो है हर 6 महीने में, साल भर में, एनिवर्सरी में कराती है इवेंट, वर्चुअली कराती है। सो ये एक प्रॉब्लम है कि उनके पास कोई बड़ा ब्रांड ही नहीं है कि कौन है। सो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, एक अपॉर्चुनिटी देखता हूँ मैं कि हम एक बड़ा ब्रांड उभर के निकल सकते हैं इस मामले। मैं वेबिनार करता हूँ कॉलेज के साथ, तो मैं जूम यूज़ करता हूँ। बिल्कुल लिंक करता हूँ, जूम में कोई लिमिट भी नहीं होती। नहीं सर, सब पेड होता है। अगर पेड वाले में लिमिट नहीं होती, पेड वाले में तो नहीं, अनपेड वाले में होती है, लिखना होता है। बट आप जूम को, गूगल मीट को कैसे टक्कर दोगे? गूगल मीट इज फ्री, गूगल मीट तो फ्री है, कोई चार्ज लेता नहीं है इसलिए। सर एक इकोसिस्टम बनाती है। सर जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कोई एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हो, फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा होगा कोई नया फोन कंपनी है या फिर कोई भी है, तो एक इवेंट कराते हैं। आपने देखा होगा नोएडा गुड़गांव में बड़े बड़े पोस्टर्स लगे होते हैं। उसी को अगर हम वर्चुअली कराएं तो हम अपना एक इकोसिस्टम बना सकते हैं सर आगे जाके। ये रहेगा सर। मुझे समझ नहीं आ रहा लेकिन बेसिकली कि क्या बिजनेस है और क्या क्या चाह रहे हो आप। लोग ने मार्केटिंग भी करोगे आप उनके लिए? कंपनी स्टार्टिंग में तो ये फ्यूचर प्लान्स है सर। पर आप उनकी मार्केटिंग क्यों करोगे? जूम तो मार्केटिंग किसी की नहीं करता। नहीं करता सर। आप जैसे अगर कोई फॉर एग्जांपल हमारा क्लाइंट है, उसको वो चाहते हैं कि उसका प्रोडक्ट हम उसके लिए ऑडियंस लाए, तो हम ऑडियंस ढूंढ के लाएंगे। हम उसके लिए क्लाइंट के लिए मार्केटिंग करोगे, जूम पे नहीं। जैसे जूम तो एक माध्यम होगा कि हम उनको बुला रहे हैं, प्लेटफॉर्म हो गया, हम उनको खींच के लाएंगे जूम तक। तो मतलब आप जूम पे ही कराओगे वो वेबिनार? हाँ, आप बस उनके लिए वो क्राउड लेकर आओगे? क्राउड लेके आएंगे सर, मार्केटिंग का उसके। अच्छा मैं समझ गया। नहीं सर, बट ये एकदम फ्यूचर प्लान हो गया हमारा जो प्लेटफॉर्म सेटअप है, वो लास्ट में सर। जैसे स्पॉन्सर और ये स्ट्रेटजी एंड प्लान, स्पॉन्सर भी आप लाओगे, मार्केटिंग भी आप करोगे, क्लाइंट के लिए स्ट्रेटजी कैसे। तो कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ इवेंट प्लान करा देते हैं, उनके पास कॉल आता है कि भाई इतने बजे करा दो। इससे पता क्या होगा, मैं जब अपनी कंपनी मार्केटिंग में दिल्ली से अपने 3 ब्रांचेस है मेरे पास, मैं संभालता हूँ। तो डीयू में मेरे बहुत से कनेक्ट सब कॉलेज में सेमिनार वेबिनार सब कराता हूँ। मैं ये प्रपोजल लेके गया था, एक कंपनी थी हाइब्रिड करके। तो मेरी कंपनी ने मेरे को बोला कि जो आपको अपनी नौकरी प्यारी है कि नहीं? मैंने क्या हुआ? उन्होंने बोला कि अगर आप इनको ले आओगे तो सारा काम तो आपको वो कर रहे हैं, आप मार्केटिंग क्या कर रहे हो जब वो सारा काम आपको करके दे रहे हैं? तो आप तो लोग आमने से लोग नौकरी खा जाओगे मार्केटिंग वालों की। तो आप तो कंपनी को सस्ता पड़ जाएगा कि आपसे आउटसोर्स करा रहे हैं और काम करवा रहे हैं, तो मार्केटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक आइडिया तो लो। अच्छा प्लान है। देखो होता है क्या है कि बिजनेस जैसे हम अगर इवेंट प्लान करें तो हम थर्ड पार्टी को दे सकते हैं कि मार्केट आप कर दो हमारे लिए। सो एक वो रहेगा, ऐसी बात नहीं है। आप फॉर एग्जांपल आपका एक क्लाइंट है, आपको उसकी फुल ऊपर की चारों चीजें करनी है, चलो क्या कॉस्टिंग क्या रहेगी आपकी? सर कॉस्टिंग रहेगी सर, उसका प्रोडक्ट क्या है, उसकी रेंज कितनी है। अगर एक वो अगर इस लेट्स से टाटा हमारे पास आया, उसकी ने एक ईवी आई है, तो सर उसकी डेफिनेटली लैक्स में जाएगी, क्योंकि जो उसका जो मार्केट शेयर होगा, मार्केट जो रेंज होगी हमारी बहुत ज्यादा ऑल ओवर इंडिया। स्टार्टअप कंपनी है, उसको 500 क्लाइंट्स का एक वर्कशॉप करा दिया ऑनलाइन, तो कैसे करोगे? क्या उसको कोटेशन क्या दोगे? सर एक्चुअली फॉर एग्जांपल अच्छा अगर उसको 500 लाने हैं तो पहले तो हम अपनी कॉस्ट निकालेंगे, देन उसके ऊपर अपना प्रॉफिट रख के करेंगे। कैसे निकालोगे कॉस्टिंग? वही तो पूछना चाह रहा हूँ। पता है मार्केट में क्या रेट है? अगर जैसे इवेंट में बच्चे बुलाने का क्या रेट है पता है? एडटेक में बताऊँ क्या है, 200 रुपये 200 रुपये देते हैं पर बच्चे का, और वो आ जाते हैं कॉलेज के बच्चे आएंगे 200 रुपये बनाते हैं। लेकिन आप बताओगे कि आप क्या चाहिए कंपनी से कि आपको भी प्रॉफिट हो जाए और बच्चों को भी पैसा मिल जाए और बच्चे भी आ जाए। सर देखो इस वाले जैसे आपने जो सिनेरियो बताया, इसमें तो टोटली मार्केटिंग है हमारा। तो जैसे वर्चुअली हमने इवेंट प्लान कर दिया, जैसे हमने जूम पे सारा ऑर्गेनाइज कर दिया, हमने थर्ड पार्टी गए, उनको बोला कि आपको लाना है, वो लाए, उनकी कॉस्ट निकाली, देन जैसी भी हमारी बार्गेनिंग ये उसको भी आउटसोर्स करना मार्केटिंग। आउटसोर्स कर। आप एक बात बताओ मेरे को, आप गारंटी करोगे कितने बच्चे बैठेंगे वर्कशॉप में? गारंटी आप ले रहे हो? गारंटी सर तभी तो हमारा हम सर ट्रस्ट बनाना चाहते हैं, ब्रांड बनाना चाहते हैं। तो आप तो आउटसोर्स कर रहे हो, तो आपको गारंटी कैसे आ सकती है? आप तो कैसे आएगी? आपको मार्केटिंग तो आउटसोर्स कर दी। हाँ जी सर। तो आप कैसे गारंटी ले सकते हैं आउटसोर्स करने के बाद? आपको एरियल बीडीएल पता है? अबव द लाइन मार्केटिंग में 2 कॉन्सेप्ट है, पता है आपको? नो सर। आपको होर्डिंग का प्राइस पता है? जो होर्डिंग लगते हैं, हाँ सर। होर्डिंग का प्राइस पता है? ठीक है, क्या प्राइस होता है होर्डिंग का? सर अगर प्रिंटिंग कॉस्ट उसकी सर 12 रुपीज़ पर फुट होती है। मैं पूछ रहा हूँ लगाने का, लगे वो रॉयल्टी जो चार्ज करते हैं साइट पे जो रॉयल्टी लग जाती है वो 2000 से 2200 पर बोर्ड। भाई मेरे को बता दो प्लीज, मैं 3 लाख रुपए दे रहा हूँ अपनी कंपनी के लिए, 15 दिन के लिए
मेरी खुद की फैक्ट्री है सर। नहीं आप प्रिंटिंग की बात मैन्युफैक्चरिंग की बता रहे हो, प्रिंटिंग की कॉस्ट बता रहे हो। हम पूछ रहे हैं ब्रांडिंग की, जैसे अगर आप मॉल के बाहर जाओ तो बना हुआ है, लगवाना है, ओके ओके, वो फ्रेम के साथ जो लगता नहीं है, हम उसकी बात कर रहे हैं। उसका एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट जो राइट। मैं तो उसके सर फ्लेक्स की cost- आप प्रिंटिंग भी करते हो? सर मेरे पापा की फैक्ट्री है सर, फ्लेक्स की। ये बिजनेस क्या करता है भाई? अच्छा ये वाला नहीं प्रिंटिंग करते हैं हम सर, ऑनलाइन रहते सर। नो थोड़ा पानी पियो पहले, थोड़ा पानी पियो। आप स्विमिंग पूल में पानी पियो, आप भी पियो। पूरी टीम का खाना अकेले करना पड़ रहा है इनको। थोड़ा पानी पियो। Hi, I am Abhijit Verma and she Nishika Bajaj and Shishti Gautam. We are currently pursuing BCA from Common Institute of Higher Education and Advanced Technology, and we are in second semester. And our company name is Bright Memories Event Management Company. So our topic is event management. Our business strategy is event management. We are excited to share this for your upcoming event. Our team specialization is to make your event a remarkable and a successful memory. And in this we include ओके सो जैसे कि निशिका ने बताया कि हमारी जो कंपनी का नाम है वो है ब्राइट मेमोरीज। तो दिस इज मतलब मेरी तरफ से मेनली इंट्रोडक्शन हमारी कंपनी का यही रहेगा। एंड अब जब मैं आपको पिच करूँ फॉर दिस इवेंट के लिए, तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हमारे इवेंट की डिटेल्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई भी फंक्शन हेल्ड कराना है तो उसके लिए आप कब वो कराना चाहते हैं, उसका वेन्यू कब होगा, आपके अटेंडीज कितने होंगे, एक्सपेक्टेड अटेंडीज आप लोगों ने सोच रखा हो किन किन को आप इन्वाइट करोगे, तो उस चीज़ के लिए हम इसमें इवेंट डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट इज सर्विसेज। तो हमारी सर्विसेज कौन कौन सी होंगी? हमारी जो कंपनी है ब्राइट मेमोरीज वो कौन कौन सर्विस प्रोवाइड करती है? केटरिंग सर्विस, टेक्नोलॉजी लाइक डीजेज एंड द स्क्रीन्स यू वांट देयर। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज अगर आप चाहते हैं कि आपके गेस्ट आए और आपके पास कोई जगह नहीं है कि वो लोग कहाँ पे रहेंगे, तो हम आपके लिए बुकिंग करा सकते हैं इन द होटल्स, ताकि आपके गेस्ट जो है वो इजीली और आराम से रहे। नेक्स्ट पॉइंट इज कि आपको किस हिसाब की डेकोरेशंस चाहिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज हमारी सर्विसेज हर जगह अवेलेबल है, बट इन इंडिया, ऑल इंडिया। आपको बाली, गोवा, राजस्थान, दिल्ली, मुंबई, एनीवेयर यू। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज बजट एस्टिमेट। अब हर किसी का बजट सेम नहीं होता है, किसी को अपना जो बजट है 10 लाख के अंदर रखना है, किसी को 20, किसी को 1 करोड़, तो सबका अलग अलग होगा। तो हम इसमें अपना बजट एस्टिमेशन देखेंगे कि हमारे कस्टमर का बजट कितना है। नेक्स्ट पॉइंट इज टाइमलाइंस। टाइमलाइंस यानी कि आप कितना टाइम है आपके पास, आप कितने टाइम में अपना फंक्शन एंड करना चाहते हैं, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में या 1 वीक में। उस हिसाब से हम आपके इवेंट्स को मैनेज करेंगे कि फर्स्ट डे में कौन सा इवेंट होगा, सेकंड डे में कौन सा होगा। अगर आपको कभी 2 इवेंट एक साथ करवाएं तो वो कितने कितने टाइम के होंगे, ये टाइमलाइंस में आएगा। एंड द कंक्लूजन इज, इससे और भी ज़्यादा इलेबोरेट करके हमने अपनी पीपीटी में दिखा रखा है किस हिसाब से हमारी स्टाफिंग है, किस हिसाब से हमारा बजट है, कौन सी चीज़ में कौन सा बजट कितना जाता है। अभी तक कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया? नहीं मैम, अभी कोई इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं किया। आपके अंदर बाकी स्टार्टअप इवेंट मैनेजमेंट कंपनी एक और आई थी, हाँ जी क्या कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं लगा। सर मेरे हिसाब से अगर आप चाहते हैं कि आपका इवेंट सबसे कम, वो भी आपको प्रोवाइड करा सकते and we customize it according to your needs. 10,000 में हो जाएगा? नहीं सर, जितना बजट हमने सेट किया है वो 7 लाख का है। 7 लाख कम है, उससे कम थोड़ी सबसे कम 7 मैम लाख है। अगर आप आज के, नहीं मैम अगर आप आज के हिसाब से देखो तो जैसे अभी मेरी फैमिली में अच्छा, फॉर एग्जांपल For a middle class family, 7 लाख का बजट बहुत ज़्यादा है। तो आप सिर्फ आप किनको कोच कर रहे हो? सिर्फ हायर मिडिल क्लास फैमिली और रिच को, मिडिल क्लास फैमिली को कोच नहीं कर रहे। अगर 7 लाख is going to be the lowest budget for you, then तो it's difficult for middle class family. और 7 लाख में क्या क्या होगा? 7 लाख में आपकी केटरिंग, द डीजे, द वेन्यू। कितने आइटम्स होंगे? केटरिंग में अराउंड 10 आइटम। मैं बुफे में 200 रुपये में खा लूँगा। जनकपुर में बहुत है यहाँ पे, आपको ही पता है, मुझे पता नहीं जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। Menu means we are talking about. हाँ जी। Complete menu, उसमें 10 dishes दोगे आप सिर्फ, snacks, main course, drinks. सॉरी मैंने सिर्फ मेन कोर्स बताया, आई एम सो सॉरी। हाँ, तो मतलब सब कुछ मिलाकर कितनी आइटम्स आते हैं? 30 to 40 around. 30 to 40? It's too much. No, it's less. It's less. It's less. मैम अगर आप बहुत And according to our budget, we'll see
आप प्लेटिंग सिस्टम करोगे पर सिस्टम या आप कैसे करोगे? प्लेटिंग सिस्टम पता है? हाँ जी, प्लेटिंग कितनी की प्लेट होगी पर्सन की? अगर एक वो मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो आई थिंक 500 की है। प्लेटिंग सिस्टम तो फिर सबके लिए आप सेम ही रखोगे ना? हाँ जी। हाँ, तो प्लेटिंग सिस्टम क्या होगा? मैम, ऐसा होगा ना सबके कुछ साथ same थोड़ी होगा। ऐसा होगा ना, एक स्लैब प्लेटिंग सिस्टम होगा ना कि बेसिक प्लेटिंग सिस्टम, हाँ जी। बेसिक 500 हो गया, नेक्स्ट गोल्ड हो गया, फिर प्लैटिनम हो गया, समथिंग लाइक दैट। आप ऐसा कभी कुछ होगा? कभी कोई बैंकेट आपने पार्टी अटेंड करी आपने कहीं करी है? अब आपको पता है बुफे लगता है, वहाँ पे प्लेटिंग सिस्टम होती है, वो वहाँ का एवरेज कॉस्ट प्राइस क्या होता है आपके हिसाब से? 1500 से 2000 तो आपने 500 में कितनी डिशेज देनी है? और वहाँ पे डिशेस देखिए कितनी होती है। मैं एक नॉर्मली बात बोलूँ, विद इन 5.5 आपको कम से कम 150 से 200 डिशेस मिलेंगी किसी भी बैंक में, 5.5 लाख। और इसमें आपका डेकोरेशन, लाइटिंग सब कुछ होगा? सब कुछ है। और बैंक्वेट्स आजकल खुद ही सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपकी कहाँ जरूरत पड़ेगी? आप अपने आप को कहाँ फिट करोगे? 250 से 300 लोगों की गैदरिंग, 5.5 लाख और 150 आपका डिशेस, इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। मार्केट बहुत बड़ी है, कॉम्पिटिटर्स प्लेयर्स बहुत सारे हैं, आप अपने आप को कहाँ फिट करोगे? क्योंकि बैंक्वेट वाले आजकल खुद ही दे रहे हैं सब कुछ। कहीं रिसर्च किया, कोई कंपटीशन देखा, कुछ देखा, या सिर्फ बैठ के सोचा कि इवेंट मैनेजमेंट करना है, दैट्स इट। मैम अभी तो फिलहाल बैठ के सोच सिर्फ बैठ के इवेंट सोचा। मैनेजमेंट करना है। कुछ कॉम्पिटिशंस के बारे में पढ़ा था, लेकिन वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। स्प्लैश, सीसन, गो2 एंड सीवेंट। मिडिल क्लास आदमी इनके पास जाएगा भी नहीं जाएगा सर, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है। तो यूनिवर्सिटी तो गैप कहाँ है? आपने तो डायरेक्ट ही आसमान छू लिया। हाँ जी। गैप कहाँ है? पहले गैप तो एनालाइज करो, मार्केट में कौन सा पोटेंशियल कस्टमर है आपका। हाँ, आप बताते केटरिंग, 7 लाख में केटरिंग हो गई, और क्या क्या दोगे आप? केटरिंग, हमारा वेन्यू, द डेकोर। वेन्यू कहाँ पे दोगे? कौन से एरिया में दोगे? साउथ दिल्ली? आप कहाँ चाहते हैं? साउथ दिल्ली। तो प्रीमियम साउथ दिल्ली में मिल जाएगा? नहीं, बहुत मतलब उसके तो टाइम तो लगेगा ना सर। ठीक है, चलो और कहाँ दे सकते हैं? और क्या चीज़ है? तो आप लोकेशन दे दोगे और लाइटिंग भी? हाँ जी, उसी टाइम पर एसी या नॉन एसी? एसी। गोवा में भी तो भी 7 लाख नहीं। डेस्टिनेशन वेडिंग। एक बुकिंग आ रही थी, रहेगी आते हैं। अभी आपने बोला था ना हम डेस्टिनेशन भी प्रोवाइड करते हैं, गोवा, राजस्थान। मैम बट वो 10 लाख का नहीं होगा ना? अच्छा 10 लाख, मैंने तो 7 बोला था वैसे। वही मैम, 7 वो कितने में होगा? ठीक है, गोवा में अगर डेस्टिनेशन वेडिंग करानी हो तो उसके लिए अभी हायर के लिए 7 लिया। अप्रॉक्स मत्स्य में बोल देना। राजकोट में, ठीक है, राजकोट में डेस्टिनेशन वेडिंग करानी है, आप बता दो मुझे। नहीं जा रहे गोवा, छोड़ो। आई थिंक अराउंड 20 लाख के बीच में हो जाना चाहिए। ठीक है, इसमें आप ट्रैवल भी इंक्लूड करोगे? नहीं। ट्रैवल नहीं दोगे? अच्छा जी। वहाँ पे रूम्स? कितने दिन? हाँ जी, रूम्स होंगे। कितने दिन? आपको कितने दिन के लिए? सारे फंक्शन में, शादी है तो सारे फंक्शन होंगे वहाँ पे तो? हल्दी, मेहंदी, कॉकटेल, संगीत, हाँ सब कुछ। फिर शादी भी, फिर शादी के अगले दिन ठीक है, रिसेप्शन भी। शादी के अगले दिन वाले जो रिचुअल्स होते हैं ना, वो भी वही होंगे। अब क्या मतलब, लड़की की विदाई के बाद में वो वहाँ जाके कहाँ ही रिचुअल करेंगे, वहीं सभी करवा के फिर एक ही साथ विदाई, वहाँ से वो अपने घर, यहाँ से घर वाले अपने घर। तो 7 to 8 days। हाँ, 7 to 8 days। ठीक है। खर्चा बताओ। पता है मुझे क्या लगता है कि आप लोग प्रॉफिट में तो बहुत अच्छा जा रहे हैं, आप लोग प्रॉफिट बहुत मोटा कमाओगे तो मुझे लगता है बट आप सामने वाले की प्रॉफिट नहीं देख रहे आप लोग। सिर्फ अपना नहीं सोचना, सामने वाले का भी सोचो, तभी कस्टमर बनेंगे। हाँ जी, है ना? तो किसी से बात करे थे केटरिंग वाले से, लाइटिंग वाले से, या सब कुछ खुद का इन हाउस है? नहीं अभी बात नहीं। तो आप वेंडर को साथ में लेके चलो। वेंडर्स के साथ बात करो यार, वेंडर्स से एक एस्टिमेट लेके रखो। उनसे आप उनको साथ में जोड़ो, अपनी टीम तो बनाओ। वेंडर्स के साथ जोड़ोगे, टीम बनेगी, तभी आगे कुछ किसी कस्टमर को रेट दे सकते हो, वरना कैसे रेट दोगे?
अब आपने मुझे दे दिया रेट वैसे राजकोट का है ना 20 नहीं ज़्यादा हो गया यार 15 to 20 बोला था 15 नहीं आपने 15 to 20 बोला तो मैंने 15 लिया उसके बाद अभी जब मैं बैठूंगी तो फिर मैं बार्गेनिंग करूंगी है ना फिर मैं और कम करवाऊंगी ठीक है और 8 दिन रुकना है तो राजकोट में मुझे अच्छी जगह बता We are currently pursuing BBA from Kamal Institute of Higher Education and Advanced Technology, and we are in our final year. So our business idea is cafe and cafe restaurant, and this is our logo for our cafe, and we named our business like Charu because as a business partners, our name starts with CHA Cha, and my name is Ru. So like Charu, as a it's a Ruchi. तो चारू कैफे बिकॉज ऐसा ट्रेंड आजकल चला हुआ है कि दो नेम को जोड़कर एक चीज़ का नेम हम रख रहे हैं तो उस वजह से हमने ट्रेंड को फॉलो किया है तो इसमें हमने चारू नाम रखा है अपने कैफे का सो इसमें हमारा सबसे पहला है कि लोकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लोकेशन है जो हमने अपने ऑडियंस को टारगेट किया है उसके रिगार्डिंग जो लोकेशन हम चाह रहे हैं वहाँ पे ऐसा है कि यंग जनरेशन भी हमें मिल जाए और बिजनेस प्रोफेशनल्स भी जो होते हैं बिजी शेड्यूल से अपने वो भी हमें मिल जाए और ऑब्वियसली और क्रिएटिव पीपल भी हमें मिल जाए तो इसके लिए हमें कैसा लोकेशन चाहिए जहाँ पे हमें ऐसे ऑडियंस मिल सके सो लाइक हमें ऐसा लगता है कि CP कनॉट प्लेस हमारे लिए बेस्ट लोकेशन है जहाँ पे हम अपना कैफे ओपन कर सकते हैं वहाँ पे हमें टारगेट ऑडियंस भी मिल जाएगी यंग जनरेशन ज़्यादातर वही है आप दोनों बेस्ट फ्रेंड हो कब कितने साल से 2 इयर्स कल कोई रुचि अलग हो गई तो इसका नाम चार रहेगा या रूम रहेगा चंचल अलग हो गई तो क्या कैफे का नाम फिर चेंज हो जाएगा क्या हो जाएगा सब उसके रिगार्डिंग तो चेंज करना ही पड़ेगा फिर ये करके नहीं मुझे कुछ समझ स्ट्रांग होनी चाहिए ना हाँ या तो आप नाम ऐसा रखो कि कल को आप प्रॉफिट कमाओगे किसी में आया कि आपको ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए कोई बोला मेरे को कम प्रॉफिट चाहिए तो फिर कैसे करोगे बताओ सर वो तो फिर पहले से हम 50-50 लेके 2 साल की चलेंगे दोस्ती है ना 2 साल की दोस्ती है बस 2.5 साल से ज़्यादा 2.5 साल से ज़्यादा हो गए यहाँ दोस्ती 10 साल लगे टिकती हम 2.5 साल बता रहे हो सब बिजनेस मैन अलग होता है दोस्ती अलग है सर अभी बिजनेस कर रहे हैं तो सबसे पहले बिजनेस मैन की तरह सोचेंगे बिजनेस वुमन की तरह सोचेंगे कि हम बिजनेस कर रहे हैं तो अपना बिजनेस माइंड लगाए दोस्ती को बीच में लेकर ना आए वो चीज़ अलग है और बिजनेस पर्सन अलग है वो लोग पार्टनरशिप पे खोल देते हैं उनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं या तो फिर भी हम फ्रेंड्स हैं हम दोनों को एक दूसरे का नेचर भी पता है लाइक हम दोनों में पैसों को लेकर अब तक कोई झगड़ा नहीं हुआ है आगे भी नहीं होएगा तो कॉस्टिंग क्या निकाली शिपिंग पे क्या कॉस्टिंग वगैरह क्या पड़ेगी प्रॉपर पूरा खोलने के लिए वेल फर्निश्ड और भी सीपी में आपने बोला है सीपी में तो आपको पता है रेंट फर्नीचर सब कुछ सर हमारा ऐसे इनिशियल इन्वेस्टमेंट सर 15 to 20 लाख का हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसमें हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 10 to 25% तक का प्रॉफिट मार्जिन है सो हम ये लेके चल रहे हैं अभी इनिशियल एज अ इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसमें आप 2 ही पार्टनर हो यस मैम आप सकते हो मैंने से पूछा कल को अगर रुचि अलग आती है तो क्या फिर हम से 4 आ जाएगा लड़ाई हो गई थी मैंने वही पूछा मैंने सेम चीज पैचअप पे हो गया मैंने सेम चीज पूछी कल को लड़ाई हुई फिर क्या होगा हां तो पार्टनर में तुमने एक लिए पार्टनरशिप में तो बेटा हमेशा झगड़े होते हैं उस केस में फिर और दोस्ती में तो और होते हैं बहुत ज्यादा सजा ज्यादा प्यार होता है झगड़ा भी ज्यादा होता है दोस्ती टिकती भी नहीं गई मैम अभी बिजनेस आइडिया तैयार किया है अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं हो सकता है आगे जाके कुछ और पार्टनर्स हमारे साथ जुड़ जाए कॉफी क्यों चूज किया तुमने सिर्फ कॉफी पे आओगे क्या देना कैफे एंड बेक ओवरऑल है सीपी में तो ऑलरेडी स्टारबक्स है टेन हॉटेल्स है अपने आप को स्टैंड आउट कैसे करोगे सर वो तो एक तरीके से हमारे कॉम्पिटिटर्स हो गए हैं तो हम प्रोडक्ट अपना देंगे ना लेकिन लाइक जो कॉफी हो गया टी हो गया उनके पास भी हमारे पास भी है जो डिफरेंस है वो क्वालिटी हो जाएगी प्राइस हो जाएगा एनवायरनमेंट हो जाएगा सीपी में रेंट के लोग कौन खरीदोगे कुर्सी दे दो कितना रेंज आ रहा है 1 लाख से ऊपर जगह सोच रहे हैं ना सीपी बोला था हमने लाख से ऊपर बोला ही बोले सीपी और लाख से ऊपर है अगर आप बाहर रोड मेन रोड पे लोगे तो लाख तो अच्छा मोटा है थोड़ा अंदर ही लोगे तो तब भी लाख रुपए जाएगा जाएगा हां तो सर जो लोकल वो टपरी वाले वो भी पे करते हैं वो भी पे करते हैं लाओ चालू अभी रिसेंटली मैं सीसीडी में गई थी सर बहुत छोटे से स्पेस में था सीपी के घुसते ही खत्म है लगभग वो इतना लेविश बनाया हुआ था आप सोचो उसमें भी कितना एक्सपेंस लगा हुआ
तो मैम उस हिसाब से लाइक वो लेविश बनाया हुआ उसमें पैसे लगाए तो उस हिसाब से कस्टमर्स भी तो आ रहे होंगे ना। तो सीसीडी का नाम भी तो है, Already बहुत brand है। बड़ा ब्रांड है, आप तो अभी बोल रहे हो। पता है सीपी में जो वो नहीं है जहाँ पे बहुत सारी नॉर्मल मार्केट जो सारी पटरी पे मार्केट लगी हुई है शूज और कपड़ों जनपद वाली। वो जनपद वाली मार्केट, उसमें एक नॉर्मल सी रोड पे एमसीडी को 15 से 20 हजार रुपए जाते हैं, एक जूते वाले ने लगा रखी है अपनी दुकान, सिर्फ पटरी पे लगा रखी है, उसने कुछ नहीं 15 से 20 हजार हर महीने देता है। और जिससे वो शाम को उठा के उसे लेके भी जाना है। शाम को उठा के वो सारा सामान उसको लेके सुबह जाना भी है, set सुबह करना सारा है। सामान सेट करना है। वो शूज वाला कितना ही एरिया है, इतना सा एरिया सिर्फ वहाँ उधर से यहाँ तक बस। डोंट वरी, मैं आपको रोड पे आने को नहीं करूँगा। ये नहीं नहीं मैं तो बताओ सीपी की और कोई और रीजन ले लो, साउथ कैंपस ले लो, नॉर्थ कैंपस ले लो, स्टूडेंट एरिया है ना वो, तो हट से नहीं। तुम लोगों ने कॉलेज के बारे में नहीं सोचा? कॉलेज की कैंटीन से कोलैबोरेशन कर लो। हाँ, अभी सर जो फर्स्ट टीम आई थी उन्होंने कॉलेज Near एरिया by के college. नियर बाय हाँ, near by. कैफेटेरिया ओपन करने का आइडिया दिया। एक्चुअली हमारा जो है ना डबल पर्पस है, जिसमें इंस्टीट्यूटल एरिया भी हो प्लस जो ऑफिस वर्कर्स है ना लाइक एम्प्लॉयज एंड ऑल उनके लिए भी हो, ताकि वहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी ज़्यादा से ऑफिस ज़्यादा। एम्प्लॉइज टू बी ऑनेस्ट आफ्टर ऑफिस कॉफी नहीं पिएगा, वो कुछ और पिएगा। टू बी ऑनेस्ट सबको बता दो, वो फ्रेश सर लंच ब्रेक में तो ले सकते हैं ना। लंच में तो लंच करेगा, चाय अच्छा, पीएगा। आपकी कॉफी के चार्जेस क्या हैं? मैम 200 से अंदर। अब देखो सर कॉफी भी इतनी कॉस्टली। 10 रुपए की चाय पी लूंगा मैं, तो मैं 200 रुपए की लंच करूंगा। मैं ओवरऑल बेवरेजेस का चार्जेस बताया है, एक कॉफी का तो नहीं 99 हो गया 120 हो गया, जो है कस्टमर पे डिपेंड करता है। कॉफीज की भी काफी वैरायटी कैपेचिनो लोगे तो कॉस्टली है, नॉर्मल कॉफी तो सस्ती है। लाटे है, एस्प्रेसो कैपेचिनो है, बहुत सारी